So, guys, we'll start with your introduction. Tell me your name, experience, and working company, and a year of total year of experience. Anyone can start. We'll complete in next 15 minutes all introduction. Then Yeah, we'll hi. start. Yeah, hi. Myself Santosh Kumar Sahu. I'm working with the Fast Guy and having 4 year experience in SIP and VoIP, and I'm working with the open source Asterix. Thank you. Okay, great. Next. Hello, my name is Y- Abhishek Yes, Abhishek. and I'm currently working in Samsung R&D Institute, Noida as a protocol engineer. I'm working for T-Mobile. Okay, so you are working for 4G, 5G, or some 5G, both 4G, 5G? 5G. Okay. Next. Hello. Yes. Good morning, sir. Good morning. Sir, I am Amrit. I have now 11.5 years of experience, but I'm currently working in Mindtree and working on deployment testing on SIP IMS. Okay. So you are already working on SIP IMS, right? Yes, sir. No, Yes, sir. sir. Means last 1 year, sir. Last 1 year. Yes, sir. Great. Next. Hello. Yes. Good morning, sir. Om Prakash. Now currently working in IWS for quality engineer. Before company Brightview Telecom Private Limited and BSS engineer. Okay. So BSS quality engineer. Yes, sir. Now quality. Installation Yeah. and all. Yeah. All, sir. Okay. Tower equipment installation. Yes, sir. Okay. Next. Hi, my name is Kaushal, and I am currently working with Ericsson, and I have total 6.3 years of experience in RF domain, and I am working as an RF engineer. JS4, JS5. Sorry? JS4, stage 4, stage 5. Yeah, actually, I am working off-role as an Also. in our Ericsson. Okay. Okay. Yeah. Next. Yeah, hello. Myself Vishal Singh, working in Vodafone Idea Limited in operation domain, having total of 12 year experience in operation domain, all integration and maintenance. In which circle, Vishal? UP West. UP West. Okay. Great. Next. Yeah, hello, my name is Abhishek. I'm working with Upworks as an R&D engineer. I have good experience for 8 months. Sadeep, I'm not able to listen you. Background noise huge in your side. I'm audible now. Yeah, not able to listen you. Background is lots of noise, so please mute. Hello. Lots of noise. Yes. Next. Yeah, hello everyone. My name is Chintu Kumar. I'm currently working with Samsung R&D in Noida and a protocol engineer and a 4G 5G testing. And my total experience of 4.5 years in testing domain. Okay. Next. Hello. Yes, Anshu. Good morning, sir. My Good name is Anshul Naik, and I have total 7 years of experience. Previously working in New Ekta Logistic as a RF engineer. It is a vendor of Reliance Jio. Ekta Telecom. Yeah, it is. Company name is New Ekta Logistic. Okay. Okay. 7 year in drive test you are doing right now, right? Previously working as a team lead, means mast work, civil and Okay. electrical. Okay. Good. Next.
Next. Guys, next. Good morning, sir. Yes, good morning. I am Rahul from Delhi. I have 5 years experience in RF engineer in Ramble India Private Limited as a vendor. 5 year experience, right? Yes, yes, sir. 5 लाख का पैकेज है अभी? 5 नहीं सर. नहीं है ना? 5 years experience है सर RF engineer. कितना? 3 year? 5 years सर. 5 year. मैंने बोला 5 लाख का पैकेज है क्या 5 year में? नहीं सर. Okay. Next. Good morning to all. I am Kashif Kalam. I have total 10 years experience in telecom operation domain, especially optical, and currently I'm working as a EMS and NMS testing profile for Fujitsu. Fujitsu. Okay. Next. Next. Yeah, good morning all. My name is Pankaj Sharma. I have total 15-year experience. I had worked with Vodafone Idea and Vodafone, and currently I'm working with Capgemini and looking project part for EPC deployment, actually. Virtual EPC deployment. Okay, so core deployment. Yeah. Earlier, I worked for operation part and deployment part. Okay. Total 15 years of experience, right? Yeah, 15 years. Yeah. Actually, currently I switched domain. Actually, earlier I was working for looking for operation part and deployment part actually, and I had also worked sometime for RF. Okay. And also work, actually multi-domain. I work in multi-domain earlier. Multitasking. Multitasking actually. But the company demand expert on only one thing. Yeah, actually earlier I worked with Vodafone Idea, where I was looking that operation part actually, and operation looking entire zone operations part. Okay. Yeah. Outage and all hardware related things, replacement, integration, deployment. Even deployment for fiber in our zone actually. Okay, you are already worked on fiber. Yeah, I also work with in fiber actually. Okay, OTDR splicing and so on. Yeah. Okay. Okay, great. Next. नेक्स्ट, अपने आप को बताने में कोई दिक्कत है क्या? गाइस नेक्स्ट। यार जिसको अपने बारे में बताने में प्रॉब्लम है वो लेफ्ट कर जाओ, ऐसे बंदे नहीं चाहिए मेरे को। Hello, hi sir, good morning. Roopchand here. I'm working with Ericsson Global. TDS company Reliance Jio. Ericsson Global, which profile? How many years of experience you have? Network engineer, as a network engineer. On roll, off roll, JS4? as a network engineer. Okay, मतलब भविष्य गड़बड़ है तुम्हारा भी 5 साल में। ओके, भविष्य तो यार सबका ही गड़बड़ है, जो 10 लाख के नीचे काम कर रहे हैं, 15 लाख के नीचे, सबका ही भविष्य खराब होने वाला है। नेक्स्ट। संतोष, सीताराम, सैयद, तनु सिंगर। Yes sir, 1 minute sir. Yes.
Vivek, Yogesh, any issue to introduce yourself? Manavar, Siaram Singh, This is Shadab. yes, Adab. Yeah, currently working with Airtel IVN project B2B. Total experience is 12 plus. 12 experience. 12 years of experience. Okay. Your profile in Airtel? Profile is a regional engineer. RE. अच्छा, RE मतलब real estate. Regional engineer. Regional engineer मतलब domain operation, RF, quality, transmission. Yeah, RF. RF. Okay. Next. Hi, this is Vivek. Yes, I have a Vivek. 15 years of experience. Currently working in Reliance Jio in Mumbai as a network lead. Oh, profile is there? Which profile? Yeah, INL, integrated net. INL. Yes, integrated network lead. Okay, INL is mixed mode of multitasking work, right? Yes, to look after end-to-end network for that cluster. Including start to site acquisition, site deliver, integration, Yes, and all, each and everything will take care by INL. yes, right. Total 15 years of experience, right? Yeah, 15 years. Okay. Next. Hi, I'm audible. Yes, audible. Hi, good morning to all of you. My name is Anil Kumar Nayak. I'm working in Ericsson India Global Private Limited as a subject matter expert for VoLTE, and I have almost 17 years of experience. Currently, I'm looking after for a European customer, who is the number one operator in the world, that is TDC Denmark. TDC Denmark. Which country? Denmark. Denmark. Okay. Your location is Kolkata, Noida, Bangalore. Kolkata. Kolkata, DLF. Yeah. New town area. Yes. Front of bridge. Yeah, front of the Gitanjali. Yeah, TCS. Front of TCS. Yes. Yeah. I was last 11 or 12 year back. I was there. Okay. Yeah. No, I joined in 2014. Earlier to Okay. that, I was in Bharti Airtel, Bihar. Okay. Great. Next. Hello, good morning to all. I'm Chandan Mato. So I have total 4 years of experience, and I'm working as a RF engineer, sir. Company name? So IWS. IWS. Okay. Yes, sir. तो RF इंजीनियर में क्या काम करते हो भाई? थोड़ा मेरे को 2 मिनट बताओगे? सर ड्राइव टेस्ट का सर एज अ ड्राइव Drive टेस्ट test. इंजीनियर सर. हाँ. जो Drive भी test. 4 हाँ बोलो. 4G का 2G का 3G का सर ड्राइव करना होता है, एंड ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ये सब सारा. ऑप्टिमाइजेशन मतलब एंटीना ऊपर नीचे करना. हाँ. यस सर. उसके अलावा क्या सीखा आपने ड्राइव टेस्ट में? सर बस यही है सर, उसके अलावा कुछ है नहीं, इसलिए सर स्विच करना चाह रहे हैं सर. मतलब एंटीना घुमाने के अलावा नहीं है क्या कुछ? एंटीना घुमाना नहीं सर, वो तो हाँ वो हो गया, ऑप्टिमाइजेशन हो गया, उसके बाद ड्राइव टेस्ट हो गया, फिर जो भी 4G है 2G है 3G का उसका ड्राइव लॉग कैप्चर करना, बस यही सब सर. मतलब केवल लॉग ही कैप्चर करना है कि कुछ और देखना भी होता है? लॉग कैप्चर हो गया सर, वही ऑप्टिमाइजेशन हो गया, कहीं कोई इशू आ गया, तो यही सब है सर, इसके अलावा कुछ है नहीं सर.
चलो तुमने बोला ड्राइव टेस्ट करते हो, क्या मेरे को एक बता सकते हो एक कॉल कैसे लगता है? सॉरी सर। अगर हमको आपको कॉल करना हो तो कैसे लगेगा वो कॉल? ऑफ कॉल। अरे मैं आपको फोन करूंगा तो आपके मोबाइल पे जो रिंगिंग फिंगिंग होती है वो कैसे होती है, कुछ है जानकारी आपको? तो उतना एक देखते कॉल नहीं। ओरिजिनेट कैसे होता है? नो सर, नो आइडिया सर। कितना टोटल 4 साल हो गए ना? हाँ 4 साल में तुमने लैपटॉप तो तुम्हारे पास होगा, हाँ सर। लैपटॉप तो एक्चुअली कभी मैं देखा सर नहीं? अप्रोक्स 2 साल मैंने हैंडी पे ही काम किया है, फोन पे ही। अच्छा। तो उसमें अप्रोक्स लगभग सर 1 साल, जिसमें सिर्फ ये ऑप्टिमाइजेशन ही था कि जो भी साइट से तो उसका ऑप्टिमाइज करना बस था। उसके बाद अप्रोक्स 1 ईयर सर ये ड्राइव टेस्ट का था, ऐसे करके सर। मतलब बहुत गंभीर स्थिति है, पता है इंडिया में लोग ड्राइव टेस्ट करते हैं, उनके पास अच्छा खासा किट होता है, देख सकते हैं ना? हाँ एक सर। कॉल कैसे लगेगा, एक कॉल कैसे सर पूरा इनिशिएट लॉग होता एनालिसिस है? देख सकते हैं वहाँ। हाँ, एक कॉल कैसे इनिशिएट होता है? अपने पास ऑलमोस्ट 28 कैंडिडेट हैं यहाँ पे, कोई भी जिसको जितना भी आता है मेरे को थोड़ा एलोबरेट करेगा? सर एक्चुअली माइंड सर एक्चुअली याद नहीं आ रहा। एक्चुअली अप्रोक्स सर 6 मंथ से ज्यादा हो गया जॉब छोड़े हुए, इसलिए सर। यार जॉब छोड़ दो या सो जाओ, उठने के बाद भी पता चलता है ना एक कॉल लगाना है कैसे लगता है। कॉल टेलीकॉम में काम कर रहे हो ना आप लोग? अच्छा ये बताओ, चलो एलटी में क्या कॉलिंग की फैसिलिटी है? हाँ। कितने नो लोग सर। हाँ बोल रहे हैं? नो सर। कितने लोग? एलटी में नहीं है, वोल्टी में है। सर वोल्टी में, एलटीई में वो फॉल बैक हो जाएगा सर। एलटी डाटा ये के सब भी लिए। हो जाएगा उसमें। क्या 5G में कॉलिंग का ऑप्शन है? डोंट आइडिया VoNR सर में है सर। 5G। नहीं मेरा नो सर, वीओएनआर में। वीओएनआर अभी ईपीएस फॉल, अभी जितने भी टेस्टिंग हुई है बस जियो में वीओएनआर आया है, बाकी सब में अभी हम ईपीएस फॉल बैक करा रहे हैं। इवन एयरटेल हो गया और अदर ऑपरेटर्स हो गए, वो वही नेटवर्क यूज कर रहे हैं अपना एएनडीसी वाला। बाकी एक जियो ही है जो मुंबई में उनका इंडिविजुअली उन्होंने जनरेट किया है अपना पूरा, मतलब डेवलप किया हुआ है वीओएनआर के लिए। वहाँ पे टेस्टिंग चल रही है हमारी अभी। वो टेस्टिंग तो लगभग 1 साल से चल रहा है, ये मेरा भी सर्वर कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट हो रहा चुका है है। उसमें, यस सर, हमारा हमने खुद भी का भी किया है। इन्वॉल्वमेंट रहा है उसमें वीओएनआर टेस्टिंग में, मेरी खुद की टीम है वहाँ पे। सर हमारी भी टीम है, अभी रिसेंटली अभी चल रही है हमारी भी सैमसंग साइड से। तो वहाँ पे नोकिया का सिस्टम लगा है ना? यस सर, सैमसंग का नोकिया नहीं का है वहाँ ना? पे नहीं, वहाँ पे नोकिया का है। नोकिया नोकिया है, है। एक इरेक्सन भी है सर। हाँ इरेक्सन भी है। नोकिया भी है, रिक्सन भी है। प्रीवियसली वहाँ पे मावेनियर था, वो शिफ्टेड हो गया यस सर। यस सर। स्वैप टू नोकिया जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी। यस सर, उनका तो तो डिफरेंट क्या है सर अब। जो टेलीकॉम बैकग्राउंड से हैं 2-4 लोगों को छोड़ के जिन्होंने बोला प्रोटोकॉल टेस्टिंग में 4G 5G में है, उसके अलावा क्या मेरे को बताओ आप, क्या लाइफ आपकी अच्छी है? वर्किंग आवर हैं आपके 8 से 9 घंटे है लाइफ? हाँ सर, एरिक्सन में तो है। केवल एरिक्सन में है दोस्त, उसके अलावा नहीं है। एरिक्सन में तो 8 घंटे कहने के रहते हैं बंदे, 2 घंटे में काम करके ना 10 राउंड मार लेते हैं ऊपर नीचे, सही है। और टाइम भी मिल जाता है, पढ़ लेते हैं। बट क्या है कि एरिक्सन में भी वो नहीं है ना JS4, जो बंदे हैं 6 लाख 7 लाख, हाँ JS5 10 लाख, वही रिपोर्ट बना रहा है एरिक्सन का बंदा। अगर एरिक्सन में कोई आरएफ इंजीनियर है, ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियर है, स्पेशलिस्ट है, वो तो रिपोर्ट ही बनाते हैं ना, हरा लाल पीला। बताओ भाई एरिक्सन वाले। No, it depends upon हाँ operator because भाई आपका ऑपरेटर आपको कितना बैंड मतलब क्या बोलते हैं, जैसे आप कितने ओपन हो आपका नेटवर्क, मतलब आप ऑपरेटर के लिए। जैसे सपोज फॉर मी, माय ऑपरेटर गिवन मी ऑल द टूल्स लाइक the all the protocol analytic tools like कौन this सा टूल? Wojix
Calyx, and that is a tool for EA for the internal Ericsson and cognitive software. We can play all the parameters, everything. So it depends upon operator. हाँ, लेकिन पैरामीटर में भी तो लाल हरा पीला ही आना है ना चेंजेस करने के बाद। बिल्कुल सही वो बोल रहे तो हैं। रिपोर्टिंग वो तो पार्ट है ना, वो वो तो रिपोर्टिंग हर का प्रोजेक्ट पार्ट का है पार्ट रहता है सर रिपोर्टिंग। सर जितने भी अगर ऑप्टिमाइजेशन लाइक टेलीकॉम में विदाउट काम करते रिपोर्टिंग हैं तो केपीआई तो सर ये मॉनिटर करने के लिए रिपोर्ट तो चाहिए ना सर। एंड तो ऑफ द मतलब डे उसी पे काम चाहे होता है। वहां पे जी चाहे सर। वो तो करेक्ट है, बट 1 साल वाला भी बंदा वही करता है और 15 साल वाला भी बंदा वही करता है। मानते हो आप इस बात को? ऑलमोस्ट ट्रू, 80% Yes, 90% ऑलमोस्ट ट्रू। और 90% मैन पावर वहां रिपोर्ट बनाती है, ओनली 10% राइट पैरामीटर पे काम करते हैं। राइट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का एग्री वही सर, एग्री ये एग्री। आइदर या एरिक्सन हो या नोकिया हो सर, हाँ, कोई भी ऑपरेटर, कोई भी कोई वेंडर भी हो, वेंडर। हाँ हाँ बिल्कुल कोई सर। भी टावर वाली जितनी भी कंपनी है ना, उसमें यही काम होता है केवल। लेकिन जो टावर के अलावा कंपनी है इसमें काम कर रही है वीओआईपी पे, ठीक है, बोल्टी पे, इसके बाद विल्टी पे, और जो अभी वीओएनआर है, उनके कंपैरिजन में अगर कंपैरिजन हम देखते हैं, एरिक्सन का एक बंदा 10 लाख का पैकेज उठा रहा है, 10 साल का एक्सपीरियंस है उसको, ठीक है, और वहीं पे मवेनियर का इंजीनियर 5 साल का एक्सपीरियंस लेके 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए उठा रहा है। डिफरेंस है। राइट। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आप एरिक्सन में हो या नोकिया पे हो या वोडाफोन पे हो, आपका सेल्स वाली जो टीम है उसने आपका बिजनेस हेड सपोज कर लो, जो बिजनेस लेके आते हैं, उसका अगर एक कॉल ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, तो सीटीओ आके बोलेगा भैया जाओ जरा चेक करके आओ वहां पे कैसे ड्रॉप हो गया। अभी फिर क्या करेगा, बंदा जाएगा उस लोकेशन पे जाके चेक करेगा, उस टाइम जो सब कुछ ठीक मिलेगा उसको, वो बोलेगा वहां से सारा कुछ कॉल वगैरह, कॉल डेटा सब कुछ चल रहा है, बराबर चल रहा है, बट वो जो ड्रॉप हुआ उसका रीजन तो नहीं बता पाएगा ना। बता पाएगा कि नहीं? मेरे को हाँ या ना बताओ। नहीं। यस, बता सकता है। मेरे पास सर वो ट्रेस एनालिसिस करेगा ना, और कहाँ से रिजेक्शन आ रहा है वो तो एटलीस्ट एनालाइज भाई वो आरएफ इंजीनियर नहीं कर सकता ना, ऑपरेशन इंजीनियर नहीं कर सकता नहीं, ना, वो कोर का बंदा करेगा सर। कोर का बंदा करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। मतलब आरएफ वो एनालिसिस इंजीनियर टीम का ऑपरेशन करेगा। वाला साइड पे जाएगा 200 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, 10 घंटे में आएगा, बोलेगा ईच एंड एवरीथिंग इज ओके। वहीं पे एक स्मार्ट स्किल वाला बंदा क्या करेगा, नंबर कौन सा है उस बंदे का, हिस्ट्री तो अवेलेबल रहती है, या करंट का भी लगाना हो करंट का भी लगा लो, ठीक है, वो जस्ट उस नंबर पे लगाएगा, पूछ लेगा भैया किससे बात कर रहे थे आप, नंबर दो, वो हिस्ट्री में निकाल के 5 मिनट में एनालिसिस करके दे देगा ये जो कॉल ड्रॉप हुआ है उसका रीजन क्या है। आइदर उस बंदे ने खुद ही काटा है, या नेटवर्क करंट से रिलीज हो गया, या बीएरआर नहीं मिले उसको। तो इन दोनों में से कौन सा टास्क अच्छा है? वो सेकंड वाला सर जो अभी आपने बताया। वो जो फील्ड पे जाएगा बंदा, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे सीनियर मैनेजर हो, चाहे स्पेशलिस्ट हो, चाहे आरएफ इंजीनियर हो, 8 घंटे काम करेगा, वो आएगा रिजल्ट 0 लेके आएगा। उसका पैकेज भी होगा 5 लाख से 15 लाख मान लेते हैं मैक्सिमम, ठीक है। कोई भी आरएफ इंजीनियर, ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियर, कोई आरएफ मैनेजर का पैकेज 15 लाख के ऊपर तो मैंने नहीं देखा। 15 लाख भी ज्यादा बता रहे हैं सर, 10 लाख थोड़ा ज्यादा बता दिया, हाँ 10 लाख मैक्सिमम। लेकिन जो 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 बंदा ट्रेस लेके रिजल्ट बताएगा उसका क्या पैकेज 5 लाख का होगा? यहाँ सर 30-40 लाख का है हमारी कंपनी में। सर जो 30-40 एनालिसिस लाख। करती है ये सब का टीम सर मिनिमम 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख ऐसे पैकेज होते हैं। ज्यादा ही है तो मैनेजर लेवल ये तो जाना ही उस पैकेज में, बैठ के 8 सर हम घंटे तो काम कर रहे हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं। But अरे I have आप wondered काम कर रहे हो, that doesn't बाकी require लोग that you should be a core engineer. A RF engineer can do it. हाँ कर सकता है ना, बट लर्निंग And we होना are- चाहिए, and स्किल we are होना doing- चाहिए। And we are doing, even if I am doing. हाउ आर यू डूइंग? आपके पास Through किसी Ogix. नोड का एक्सेस है? Yes, through Ogix, each and everything,
current and for future I can put the MC interest. I can check everything. किसी पर्टिकुलर नोड का एक्सेस है आपके पास पे? Yes. कौन सा नोड मेरे को बताइए? ENM में सब कुछ नोड एक्सेस कर सकते हैं। पर्टिकुलर नोड का नाम बताइए मेरे को। ENM तो एक प्लेटफॉर्म हो गया ना OSS का। नोड मतलब BTS मतलब साइट BTS की बात कर रहे हैं या फिर कोई पर्टिकुलर कोर नोड की बात कर रहे हैं? BTS पे तो ट्रेस लगता नहीं है ना? क्यों ENM में ट्रेस आपका लग जाता है? MC ट्रेस पर्टिकुलर MC के लिए आप ट्रेस लगा सकते हो? नहीं, मैं BTS की बात कर रहा हूँ। आपने BTS बोला ना? हाँ। नहीं मैं बोला BTS ENM का I have the ENM access में मैं BTS को चेक कर सकता हूँ, मतलब सेल ट्रेस लगा सकता हूँ, MC ट्रेस भी लगा सकता हूँ। एंड फॉर दैट इवन मेरे को ENM एक्सेस भी नहीं चाहिए, मेरे पास जो OGIX है, OGIX में मेरे को रिकॉर्डिंग ट्रेसेस भी मैं चेक कर सकता हूँ और करंट ट्रेस भी मैं चेक कर सकता हूँ। मतलब MC को डाला और उसका क्या हाँ, विद द हेल्प ऑफ MC आप निकाल सकते हो। यस, तो मेरे को OGIX के कोई पर्टिकुलर नोड की जरूरत ही नहीं है, मेरे को सब कुछ OGIX से मिल जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग एवरी नोड, चाहे वो कोर का कोई भी मतलब HSS हो VLR कुछ भी हो, मेरे को सब कुछ मिल जाए, उसमें एक्सेस मिल जाएगा। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अपने पास थर्ड पार्टी टूल भी हैं जो ईच एंड एवरी ट्रेस प्रोवाइड करते हैं। Yeah, that's true. Yeah, that is the end-to-end traces. Yeah. Yes, like Arinsu. Yeah, correct. Complete trace provide करता है end to end. Right. So जो बाकी लोग अभी उस डोमेन में हैं, फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, क्या 5 लाख 10 लाख से 20 लाख में कन्वर्ट होना चाहते हैं? Yes, sir. रेज योर हैंड। मेरे को एक कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए आप में, देन विल स्टार्ट। ये क्वेश्चन सबके लिए है जो कन्वर्ट होना चाहता है, अपडेट होना चाहता है, इन टर्म्स ऑफ स्किल, इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ लाइफ बैलेंस। बस 4 लोग हैं क्या केवल? चलो भाई, ऑलमोस्ट सभी लोग चाहते हैं स्किल अप होना। Okay, great. So next, we'll start our journey with Vikas. Are you there? Hey, hi everyone. Hi, good morning. Yeah, most of the candidate belongs to traditional telecom company, wants to migrate in updated domain with life balance and each and every aspect. Over to you. You can continue. Thank you. I was hearing everyone, whatever they were speaking. I heard every one of you. Right. I got to know what you want, what currently you're doing. Right. So that's really helpful for me. तो इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले very important thing that I would like to know from each one of you, एक सिंपल सा क्वेश्चन, then we'll start our journey. मुझे नहीं पता आपके ऑफिस में आपको क्या डेजिग्नेशन दी गई है, मुझे इतना बता दो आपकी डेजिग्नेशन के साथ आपका जो टाइटल है, जो आपके ऑफर लेटर पे लिखा है या कंपनी के पोर्टल पे नजर आता है, वहां पर कितने लोगों के टाइटल के साथ इंजीनियर लगता है? टेल मी वन थिंग। सर, myself solution engineer is mentioned. वेरी नाइस। और बताओ, सब बताओ। For myself, network engineer. किसने कहा सॉल्यूशन इंजीनियर? वेट RF एक सेकंड दो मुझको, एक सेकंड दो, मैं दोबारा इस चीज को आता हूँ, प्लीज स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। Okay. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, इसमें मैं कुछ डीप डाइव करना चाहता हूँ। किसी ने कहा सॉल्यूशन इंजीनियर, माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, Yes, राइट? sir. Yes, sir. Yes, sir. Visible. सॉल्यूशन इंजीनियर। और बताइए। My name is Abhishek and I am a lead engineer. लीड इंजीनियर, चलो वेरी गुड। और RF engineer. आरएफ इंजीनियर, वेरी गुड। सबके साथ इंजीनियर लग रहा है।
So mine is the software engineer. Network engineer. सॉफ्टवेयर Network engineer. इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसने बोला? संतोष। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो? फर्स्ट क्राई। ओके, और बताओ, और बाकियों की डेजिग्नेशन? Network engineer. नेटवर्क इंजीनियर। व्हाट अबाउट अदर्स? OSP engineer. ओएसपी इंजीनियर। यार सारे इंजीनियर हैं, कोई अकाउंटेंट बता दो। NOC engineer. ऑप्स इंजीनियर। ओके, NOC engineer. NOC. डॉक, ओके, डॉक इंजीनियर, ठीक है। व्हाट एल्स? राइट, सो मोस्ट ऑफ देम आप लोगों की डेजिग्नेशंस के साथ इंजीनियर लग रहा है। इट इज अ गुड न्यूज। द रीजन, जब आपने बीटेक किया या एमसीए किया होगा, राइट, तो आपके पेरेंट्स का जो एक्सपेक्टेशन था कि मेरा बेटा या मेरी बेटी क्या बने, इंजीनियर बने, वो सपना आपने अचीव करके दिया। बट उस सपने के साथ आपके पेरेंट्स की एक और एक्सपेक्टेशन थी। पेरेंट्स की दो एक्सपेक्टेशन थी। फर्स्ट थी मेरा बेटा बेटी इंजीनियर बन जाए, दूसरी एक्सपेक्टेशन थी सीटीसी तीसरी थी ऑन साइट। अब मुझे बताइए कितनों के पेरेंट्स इंजीनियर के साथ, तो वी नो सबकी डेजिग्नेशन इंजीनियर ही है, कितने के पेरेंट्स आर हैप्पी, आई मीन दे आर हैप्पी विद योर सीटीसी? क्या आप उनको वो खुशी या सेल्फ को कुछ खुशी दे पाए हो बेस्ड ऑन योर करंट सीटीसी? नो सर। नो, ओनली दो ही बंदे बस, बाकी सब हैप्पी? नो सर। नो सर। नो सर, यानी आपके पेरेंट्स ने काफी सारा पैसा इन्वेस्ट किया आपकी पढ़ाई में, आपकी स्टडी में, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी इंजीनियर बनने की, उसके साथ जो सीटीसी मिलना था वो क्रॉस मार्क हो गया। आप वो सीटीसी अभी तक उनको नहीं दे पाए। कितनों ने अभी तक ऑन साइट अचीव की है? सिर्फ मुझे उनके एक या दो नाम मिलेंगे। ऑन साइट कितनों को मिली है? लंदन जाने की या फिर यूएस जाने की, यूरोप? मुझे उन लोगों के नाम नहीं चाहिए जो चाइनीज कंट्री में घूम कर आए, राइट? चाइनीज, जापान, मुझे वो लोग नहीं चाहिए। आई वॉन्ट यूरोपियन कंट्रीज, आई वॉन्ट टू नो यूएस कंट्रीज जहाँ इंग्लिश लोग हैं, कितनों को वो ऑन साइट मिली है? मलेशिया वगैरह मत बताना यार, ये तो घर के पास ही है, सब चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। है कोई यूके वाला? है कोई यूएसए वाला? है कोई जापान वाला? साउथ कोरिया। कोरिया, वेरी गुड। कोरिया इज आल्सो गुड। साउथ कोरिया, वेरी गुड। साउथ कोरिया इज आल्सो गुड। बेल्जियम एंड डेनमार्क। बेल्जियम एंड डेनमार्क आपका सारा उसी में आ गया, यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है, तो वेरी गुड। तो एटलीस्ट कुछ लोगों ने थोड़ी सी खुशी अपने पेरेंट्स को दी है, विच इज गुड। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, मेन अपना सीटीसी है, यानी पैसा चाहे ऑन साइट से मिले चाहे इंडिया में बैठकर मिले, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव सभी का है ब्रेड एंड बटर विद गुड लैविश लाइफ। अब लैविश लाइफ कैसे आएगी? आई टेल यू द डिफरेंस। आपके पेरेंट्स ने आपको इंजीनियर बनाया, लेकिन बाकी का रास्ता आपने खुद ढूंढना था। इनको छोड़कर कोई और है जिनकी डेजिग्नेशन के साथ सॉफ्टवेयर लगता हो? आप इंजीनियर बन गए, बट आई वॉन्ट टू नो आपकी डेजिग्नेशन में इंजीनियर शब्द के साथ ये सॉफ्टवेयर वाला शब्द लगता हो, ये वर्ड लगता हो। आई वॉन्ट टू नो। इनको छोड़कर कोई और बताओ किसकी डेजिग्नेशन के साथ ये सॉफ्टवेयर शब्द लग रहा है? आई थिंक किसी के साथ नहीं। यू नो, हायर सीटीसी is totally based on single word, that is software.
इस सॉफ्टवेयर शब्द के ऊपर ही सारा खेल है। इस सॉफ्टवेयर शब्द में ही वो सीटीसी छुपा है जो आप ढूंढना चाह रहे हो। 5 साल का बंदा 5 साल का बंदा मेरा ही रिपोर्ट जिसकी रिपोर्टिंग मुझको थी, राइट, मैंने उसको खुद देखा है ग्रो करते हुए। 5 साल के एक्सपीरियंस में उसका पैकेज 25 lakhs। मैंने 15 साल के एक्सपीरियंस के बंदों को 50 लाख कमाते हुए देखा है, राइट। ऑन एन एवरेज लोग 20+ का पैकेज कमा रहे हैं। ओनली ये शब्द चाहिए। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? दिस इज व्हाट यू नीड। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर टेस्टिंग कर रहा हो, चाहे वो डेवलपमेंट कर रहा हो, चाहे वो डिप्लॉयमेंट कर रहा हो, चाहे वो इंटीग्रेशन कर रहा हो, बट वी वांट सॉफ्टवेयर। कितनों का गोल है ये सॉफ्टवेयर डेजिग्नेशन चाहता है? कोई इंजीनियर के साथ सॉफ्टवेयर लगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर विलिंग टू बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर and want transition in your career? Doesn't matter कि आपने बीटेक सॉफ्टवेयर में किया, कंप्यूटर साइंस में किया या नहीं किया, आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो या आप सिविल इंजीनियर, डजंट मैटर। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर? मतलब मेरा पॉइंट है आपके डेजिग्नेशन के साथ ये शब्द लग जाए। कितने बंदे चाहते हो? गिव मी योर कंफर्मेशन, यस और नो। यस सर। बड़ा वीक। Yes, sir. वेरी गुड। हाँ जी, अब हम बात करते हैं इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। दोस्त जरा अपना नाम बताइए। संतोष कुमार साहू। मिस्टर साहू, थोड़ा बताइए, आप सॉफ्टवेयर बनकर अपनी डे टू डे लाइफ में क्या डील करते हो ऑफिस में? एक्चुअली मैं आईवीआर के ऊपर काम कर रहा हूँ। आईवीआर सुनते जाना, Yes. आईवीआर पे काम करते हैं। और बताइए। तो आईवीआर के ऊपर काम कर रहा हूँ और हमारे जो यहाँ पे यूज हो रहा है ओपन सोर्स एस्ट्रिक सॉफ्टवेयर है, वो टेलीफोनिक ओपन का सोर्स है। याद रखना, ओपन सोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एस्ट्रिक डोमेन में इसका इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड डायल प्लान्स, कॉल राउटिंग, राइट, इसके ऊपर काम कर रहा हूँ सर। और कोई प्रोटोकॉल एक्सपीरियंस? नहीं, सी प्रोटोकॉल का है जो बेसिक लेवल का है, बस उतना है। ठीक है, वेरी गुड। कोई आईएमएस एक्सपीरियंस? नो सर, नथिंग। कोई 4G 5G एक्सपीरियंस? नो सर, कोई आई हैव टू प्रोग्रामिंग VoIP, एक्सपीरियंस? प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस? शेल स्क्रिप्ट एंड PHP चलो, सर्वर साइड। वेरी गुड वेरी गुड। इतना ही पूछूंगा मैं, सिंपल पूछूंगा। कितना एक्सपीरियंस आपको टोटल? सब 4 साल का है, 4.5 साल का। 4.5 साल में कितने का पैकेज है आपका? सर 11 है। डिफरेंस, सी द डिफरेंस। आप 4.5 ही मत मानो उसको, 4 ही मानो। 4 में पैकेज देखो, मल्टीपल ऑफ ऑलमोस्ट 3, मल्टीपल ऑफ ऑलमोस्ट 3। द रीजन आपको पता है? इस शब्द ने इनको इतनी सारी वर्क अपॉर्चुनिटी दी है, इतनी सारी स्किल्स दिए हैं कि इंडस्ट्री में इनका मार्केट अप हो गया है, जिसकी वजह से इनको, अदरवाइज यार ये भी हमारी तरह ही है, हम इनकी तरह हैं, सब एक जैसे हैं। हम सब बीटेक करके आए यार, क्या डिफरेंस है? हमारे भी उतने ही एनालिटिक्स स्किल्स हैं जितने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के होते हैं, बट हम लोग पीछे क्यों हैं? वाई वी आर लैकिंग? ओनली इस शब्द को पकड़ो और इसको पकड़कर भागो। ट्रस्ट मी, सीटीसी अपने आप आपके पीछे भागेगा। और नो वन कैन स्टॉप यू इन योर करियर, नो वन कैन स्टॉप यू। डे टू डे लाइफ में नई नई स्किल्स सीखने को मिलते हैं। द रीजन बिकॉज सॉफ्टवेयर शब्द इज प्लेइंग ए बिग रोल इन आईटी इंडस्ट्री। चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर टेलीकॉम में हो या नॉन टेलीकॉम में हो, डजंट मैटर। चलो, लेट्स कम बैक टू आवर मेन एजेंडा। आई वांटेड टू गिव यू कंप्लीट अ डेमोन्स्ट्रेशन कि व्हाट वी गोना लर्न, हमारी जर्नी क्या रहने वाली है, व्हाट इज आवर रोड मैप, and why you are here and why I'm here. So based on that you will able to understand and figure out कि आपकी जर्नी में क्या क्या आपको स्किल्स मिलने वाले हैं। Give me a moment guys, let me find out. मैं आपको अपनी जर्नी दिखाऊंगा, उस जर्नी में हम लोग कैसे बढ़ेंगे। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू
demonstrate here. ये भी समझेंगे लर्न क्यों करने वाले. My screen is visible, PPT or not? No, sir. No. No, sir. No, sir. अरे सारे हाथ नीचे कर लो, थक जाओगे. हाँ जी. Is it visible? Give me a confirmation. Yes, sir. Yes. Yes, sir. All right. Yes, sir. हम लोगों की यस मैं बताऊंगा आईएमएस की दुनिया क्या है. आई विल टेल यू. आईएमएस की दुनिया आपकी 2G है. आईएमएस की दुनिया 3G भी है. आईएमएस की दुनिया आपकी 4G भी है. आईएमएस की दुनिया आपकी 5G भी है. एंड बट आईएमएस लर्न क्यों कर रहे हैं, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू. और ये आपकी लाइफ में कितना बड़ा ट्रांजिशन लेने वाला है, लेकर आने वाला है. दिस इज इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड द रीजन वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज सो मच इंपॉर्टेंट. आपको मैं सिर्फ जर्नी बताऊंगा. ये वीक वाइज है. वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, वीक 6. राइट. इतने सारे वीक्स में आप अपने आप को ग्रूम करोगे. एंड आई इंश्योर यू आपकी ग्रूमिंग में मैं आपको इतना हेल्प करूंगा कि आपके प्रोफाइल में आफ्टर कमिंग टू दिस स्टेज, आपके प्रोफाइल में आपको खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा. आपको खुद लगेगा कि आपने पास्ट में किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रखा है, रियल लाइफ के प्रोजेक्ट में काम कर रखा है, कैप्स्टोन प्रोजेक्ट पे काम कर रखा है, इंडस्ट्री में काम कर रखा है. और यू विल बी एबल टू फेस इंटरव्यूज ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंटली. तो इसमें हम क्या लर्न करने वाले, हम लर्न करेंगे सिप प्रोटोकॉल. वी वुड लर्न डायमीटर, आरटीपी, एसडीपी, डीएनएस, यूडीपी, टीसीपी, एचटीटीपी, मेगाको, मैप, टीकैप एंड आइजप. राइट. देन उसके बाद नेक्स्ट वीक हम लर्न करेंगे ऑल आईएमएस रिलेटेड नेटवर्क टूल्स. जो भी टूल्स होंगे 3GPP स्पेसिफिकेशन से लेकर कॉल फ्लो, वाइप, वोल्टे और वीएनआर, विच इज 5G की दुनिया. 5G की दुनिया में आईएमएस का रोल क्या है, आई गोना टेल यू. तो जितने भी ट्रैफिक टूल्स हैं, इसका डेमोन्स्ट्रेशन, उसका ट्रबल शूटिंग, उसका वायरशक ट्रेसेस. देन विल जंप टू IMS टेस्टिंग एंड द डिप्लॉयमेंट. IMS टेस्टिंग एंड द डिप्लॉयमेंट. जिसको टेस्टिंग करनी है वो टेस्टिंग करो, जिसको डिप्लॉयमेंट करनी है वो डिप्लॉयमेंट करो. कुछ पाइथन का थोड़ा बहुत आपको एक फ्लेवर दिया जाएगा, टच. पाइथन स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए. आई एम नॉट सेइंग मैंडेटरी, ऑप्शनल है. आ जाए तो गुड है, नहीं आए तो भी गुड है, फर्क नहीं पड़ता. बट यस, इट इज इंपॉर्टेंट टू टेल यू, टीच यू अ बेसिक ऑफ पाइथन, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस आ जाए. यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मैनुअल एंड द ऑटोमेशन. नेक्स्ट द वीक 5 में हम क्या करेंगे, आईएमएस प्रोजेक्ट करेंगे. एंड दैट वुड बी योर कंप्लीट बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिनेरियोज. इस जर्नी को जैसे ही आप कंप्लीट करते हो, यू विल बी इन ए पोजिशन जहां आप इंटरव्यूज दे पाओगे. नाउ व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव अ स्पेशल पैनल इन आवर ग्रुप, इन आवर कंपनी, जो आपको ट्रेंड करेगा आपके इंटरव्यूज के लिए, आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के लिए, आपके रिज्यूमे प्रिपरेशन के लिए. देन वी हैव also very good link up with many good telecom companies. We will try to float your CVs there. तो आपके CVs उनके पास जाएंगे, वो आपको कॉल करेंगे, पीछे से हम लोग बैठेंगे, डोंट वरी, आपको पूरा सपोर्ट देंगे. आई मीन टू से कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, और जनरल क्वेश्चंस जो होते हैं उसकी प्रिपरेशन पहले से आपको करा के, आपका माइंड फ्रेम करके, विल प्रेजेंट यू देयर इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट, एंड चांसेस आर गुड, देन योर जर्नी विल गेट स्टार्टेड. अब ये आईएमएस रोड मैप था, ठीक है ना. अब आईएमएस दिखता कैसा है, सिर्फ हाई लेवल पे देखिए, क्योंकि अभी तो हम पढ़ाई नहीं करने वाले, स्टडी नहीं करने वाले. बट आईएमएस को सीखने के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ मिलेंगी, ये कंप्लीट 4G वर्ल्ड है. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इट आईएमएस. आईएमएस की अगर नोट देखोगे तो आपको कहाँ कहाँ काम करने का मौका मिलेगा. आप यूई से स्टार्ट हो जाओ. यूई यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और यूई जब यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यू कैन सी आपका जितना भी रेड सिग्नलिंग है, ये सारा सिग्नलिंग आपका, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन व्हाट यू आर गोइंग टू डू. राइट. तो आपको मौका मिलेगा पीसीएसएफ पे काम करने का, एचसीएसएफ पे, आईसीसीएफ पे, एसबीसी पे, एजीसीएफ पे, एमजीसीएफ पे, एप्लीकेशन सर्वर पे, एचएसएस पे. तो यानी इंडस्ट्री में इतनी सारी नोट्स हैं जिसके ऊपर आप काम करोगे. आईवीआर पे भी मिलेगा. IVR पे भी you also use SIP diameter and all. So this is your learning gonna be very interesting. It is complete architecture of the IMS.
ये होता क्या है यार, आज तो नहीं सीखेंगे ना, जब जर्नी स्टार्ट होगी तब सीखेंगे। बट हियर वी हैव ए इंपॉर्टेंट थिंग, सिप एंड डायमीटर बात आती है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं अपने नोटपैड पे दोबारा जा रहा हूँ एंड आई टेल यू, यस रूप Chandra wanted to say something. Yes, Roop, go ahead, please. Roop, you raised your hand. नहीं सर, कुछ नहीं, कुछ Okay. Sir, one thing now, one doubt here. Yes, Kumar. सर आई एम सेइंग, अगर सर डिप्लॉयमेंट की बात अगर सर हम करेंगे तो सर जैसे कि अदर जितने वेंडर हैं सर, जो भी प्रोडक्ट में सारी की डिप्लॉयमेंट तो अलग अलग होती है ना सर, बिल्कुल उसमें अलग तो होती है। टूल्स भी अलग अलग यूज करते हैं, करेक्ट तो उसमें सर हम क्या फोकस करेंगे सर, मीन्स बस आगे इस पे वाले थोड़ा सा ये होल्ड ऑन सिलेबस करना, में? होल्ड ऑन यस सर। करना। क्वेश्चन बहुत जल्दी आया है तो आंसर विल गेट इट सून, तो जस्ट लेट मी कम टू दैट ओके स्टेज सर। वेयर यू विल गेट दिस आंसर ऑटोमेटिकली। यस यस सर, ठीक है, यस सर, चलो ओके सर। गुड क्वेश्चन। नाउ मैंने आपको बोला हम आईएमएस क्यों लर्न करेंगे, कोई मुझे बताएगा? अलग अलग आंसर चाहिए मुझे, आई नीड टू नो व्हाई वी शुड लर्न, व्हाई वी शुड लर्न और इन्वेस्ट इन आईएमएस। आईएमएस के साथ ओब्लिक में सिप लगा देते हैं, ओब्लिक में वोल्टे लगा देते हैं, ओब्लिक में विल्टे लगा देते हैं, ओब्लिक में वॉइस ओवर एनआर लगा देते हैं, वीडियो ओवर एनआर लगा देते हैं। ठीक है, ये पूरी एक जर्नी है, इसी को, ये सब आईएमएस ही है, अलग अलग नाम है बट है आईएमएस। तो हम इसको क्यों लर्न करें, हमें क्यों लर्न करना चाहिए, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए अपना टाइम एंड अपना पैसा इस टेक्नोलॉजी में? कोई आंसर देगा? मुझे आंसर चाहिए, सभी से चाहिए, अलग अलग। फ्यूचर। फ्यूचर, हे नेक्स्ट। Sir, actually, all technologies goes towards PS service, not CS services. That's why. PS service, okay, packet switch, right? Yes, yeah. ठीक है सर ये बेसिकली हेलो या सर, हम अगर आईएमएस की बात अगर करते हैं तो इसमें जैसे पहले मेरे कॉल्स वगैरह जितने चल रहे थे सर ना, तो वो टीडीएम बेसिस चल रहे थे जो काफी कॉस्टली होते थे सर, और अभी हम सर आईपी पे हम स्विच कर गया, मीन्स IPv4 यूज करें या IPv6 यूज करें सर, ठीक है। तो इससे मेरा कॉल का क्वालिटी और सर वो जो कॉस्ट कटिंग है वहां पे सर, मतलब वो सेव होता है सर, ठीक है। और फिर सर इन्वॉल्व नोड्स सर ना मेरे बहुत कम आते हैं, जैसे पहले सर था जब CS था तो फिर सर बहुत ज्यादा नोड्स आते थे सर ये पिक्चर में, और अभी सर हम एक क्लाउड में सब कुछ कर सकते हैं सर। ओके, अल्टीमेटली आप ये बोलना चाह रहे हो जो कॉम्प्लेक्सिटी थी इसको रिड्यूस करके, बिल्कुल सर, reduce the complexity of the previous technology that was based on entirely बिल्कुल सर, circuit switch, right? यस सर। चलो नेक्स्ट। IMS is nothing but voice services. IMS technology used for voice services. Or telecom point of view, voice is the basic service provided by telecom service. So अगर से old 2G और 3G का transition is nothing but IMS. So it is must, अगर से हमको वॉइस पे काम करना है तो IMS नहीं, लर्न करना आपने ही क्वेश्चन पड़ेगा। समझा ही नहीं दोस्त, ये क्वेश्चन हमारा ऑपरेटर के लिए नहीं है, ये हमारा किसी और की दुनिया के लिए क्वेश्चन, हमारा खुद के लिए है। मैं क्यों पढ़ूं, मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ हिंदी में, अगर मुझे और किसी गुड चीज में CTC टाइम से इन्वेस्ट करना है, क्यों? सर और कॉल गुड प्रोसीजर CTC पता चलता है, कैसे कॉल फ्लो होता है। प्रोसीजर जानने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट। और गुड CTC से ओहो क्या बात है, गुड CTC, वेरी गुड। ओके नेक्स्ट। बताओ 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 यार, रहने के ये भी लिए, क्या करने के लिए? मार्केट में टिकना है, मार्केट में अगर हम मार्केट में सस्टेन करने के लिए, ठीक है। Transition from hardware level profile to protocol or software level profile. हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर की दुनिया में आने के लिए, ठीक है। मैनी आंसर्स, मैनी आंसर्स, मैनी आंसर्स, गुड गुड।
अब मैं बोलूं, आपने आज की डे में अपने आप को IMS के अकॉर्डिंग बना लिया और एकदम से न्यूज आती है 3GPP जो कम्युनिटी है वो बोलती है IMS, एक न्यूज आई और उसने बोल दिया IMS ऑब्सलीट, IMS ऑब्सलीट। या उसने बोल दिया डेप्रिकेटेड, रिप्लेस्ड बाय एक्स टेक्नोलॉजी। तो ये जो फ्यूचर बनाने आप गए थे ये फ्यूचर बर्बाद। जो पैकेट स्विच की बात कर रहे थे खत्म। रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी में मतलब ही नहीं बनता। जो प्रोसीजर सीखा था वो ऑब्सलीट हो गया। CTC के बेसिस पे जो हमें जॉब मिल रही थी हायर CTC, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, जो CTC मिल रहा था वहीं अटक गए। कोई लेना ही नहीं चाह रहा मार्केट में सस्टेन करना चाह रहे थे, कोई लेना ही नहीं चाह रहा क्योंकि IMS में ही टाइम इन्वेस्ट किया 10 साल और बाद में टेक्नोलॉजी रिप्लेस हो गई और फ्यूचर खत्म। हो सकता है ऐसा या नहीं हो सकता? हो सकता है या नहीं हो सकता? टेल मी। कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता फ्यूचर में क्या होगा। कोई एक्स टेक्नोलॉजी आई, उसने IMS को रिप्लेस कर दिया, सारे बॉक्सेस को हटा दिया गया। जितने भी मार्केट में रिसोर्सेज थे आज की डेट पे सब रिसोर्सेज आउटडेटेड स्किल्ड रिसोर्सेज मान लिए गए और जो कुछ था फायरिंग हुई, लोगों को निकाल दिया, मार्केट में जॉब नहीं मिल रही है, एज बढ़ गई है, 15 ईयर्स की एज हो 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, नई टेक्नोलॉजी आती नहीं है। तो पॉइंट है, तो क्वेश्चन उठता है कि जब ऐसा होगा तो क्यों लर्न करें, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट ही क्यों करें जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो चलो इसके आंसर को ढूंढते हैं। आंसर इज वेरी वेरी क्लियर, आंसर इज वेरी वेरी क्लियर। वाइप की दुनिया स्टार्ट हुई थी 2013 में। देखते जाना जर्नी। या प्लीज गो अहेड। सर एक्चुअली अगर IMS खत्म होता तो 2G से, क्योंकि 2G से ही हमारा IMS था। करेक्ट। क्योंकि अगर खत्म होना तो अब तक कोई ना कोई टेक्नोलॉजी आ चुकी होती है इसको रिप्लेस करने के लिए। करेक्ट। बट कौन है भाई? बताओ इम्प्लीमेंटेशन नाम अपना। IMS टेक्नोलॉजी सर जा ही नहीं अभिषेक। सकती। अभिषेक, क्योंकि वेरी अगर गुड। ये ऐसा था कॉन्फिडेंस कि देखा मतलब वहाँ पे अभिषेक में, अभिषेक में कॉन्फिडेंस देखा। दिस इज द इम्पोर्टेंट एंड द ब्यूटी। अभिषेक के कॉन्फिडेंस में, वो वॉइस में कॉन्फिडेंस देखो कि अगर कोई टेक्नोलॉजी आनी होती 2003 से 4 से ये चल रहा है, 2G से ही चल रहा है, आनी होती तो कब का ये रिप्लेस हो चुका होता। जब आज तक कोई नहीं आया तो किसी का बाप भी नहीं आएगा जो इसको रिप्लेस कर दे। कॉन्फिडेंस देखा अभिषेक की वॉइस में। दैट इज व्हाट इट इज इम्पोर्टेंट। यही सच है, यही सच है। somebody was also trying to say something. हाँ हाँ गो अहेड। कोई सर बोलना मैं भी वही चाहता है? बोल रहा था, रिप्लेस नहीं कर सकते IMS को। करेक्ट। कॉन्फिडेंस रिप्लेस नहीं कर सकते। यस, ये 2003 से स्टार्ट हुआ था वाइप की दुनिया से। वाइप की दुनिया से स्टार्ट होते 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 मैं बताता हूँ, इसके पैरेलल में 2000 ये बल्कि 2099 में ही स्टार्ट हो गया था। इसके साथ पैरेलल में एक IMS की दुनिया स्टार्ट हुई थी। ये जर्नी बता रहा हूँ मैं, राइट। ये स्टार्ट हुई थी, इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी 2001 में। लोगों को पता भी नहीं, ये मार्केट कैप्चर करके बैठा हुआ था और ये बहुत स्ट्रॉन्ग था, ये बहुत स्ट्रॉन्ग था 2000 टिल 8 तक बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। अगर मैं वॉइप बोलूं इसका मतलब सिप ही है यार, सिप पे ही चलता है। IMS बोलूं ये भी सिप ही है, ये भी सिप पे चलता है। बट ये दो चीजें क्यों आई बताऊंगा रीजन। अलग से वॉइप चल रहा है, IMS चल रहा है, जबकि दोनों एक जैसे ही हैं। ये डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, डेवलपमेंट स्टार्ट होते सार जब ये मार्केट में स्टार्ट हुआ, मतलब इसका डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होना हुआ, ये फेल हो गया। ये फेल हो गया 2008 में, यानी मार्केट में आने से पहले ही ये IMS फेल हो गया। तो किसने कहा कि IMS की दुनिया कभी फेल नहीं हुई? हुई दोस्त, हुई। एक सिंगल ऑपरेटर तैयार नहीं था मार्केट में इस IMS के बॉक्स को या IMS के सॉफ्टवेयर को लेने के लिए। जैसी डेवलपमेंट 2008 में कंप्लीट होती है, इसके फेलियर्स आने स्टार्ट हो गए,
क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर वॉइप पे बैठे थे वो बोल रहे थे जब हमें वॉइप से सारी फैसिलिटी मिल रही है और चीपर कॉल्स मिल रही हैं, तो हम आईएमएस के बॉक्सेस को क्यों लें जिसमें हमें समझ ही नहीं आ रहा कि इतना पैसा लगाने के बाद मुझे एडिशनल बेनिफिट क्या होंगे, क्योंकि मैं वो एडिशनल बेनिफिट ऑलरेडी वॉइप से ले रहा हूँ, सारे ऑपरेटर बोल रहे थे, देन देयर इज नो नीड टू इन्वेस्ट। एंड ये बहुत बुरी तरह ड्रास्टिकली फेल हुआ। यानी आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस था ना कि कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। दोस्त वॉइप तो आया, लेकिन वॉइप के बाद आईएमएस भी आया, आईएमएस को लेने वाला कोई नहीं था। यानी स्टार्टिंग की स्टेज में ये फेल हो गया। फेलियर तो आया, अनसर्टेन था, आया, किसने सोचा भी नहीं था। बट ये फेलियर ज्यादा देर तक फेलियर नहीं रहा। 2000 यहां से स्टार्ट कर देते हैं। ये कुछ 2005 में इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है एलटी की। ये डेवलपमेंट का जो फेज था वो चला 2000 कुछ 11 तक कंप्लीट, फाइनल डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हुआ एलटी का। ये सक्सेस हो गया, इतना हाई स्पीड डेटा 4G डेटा सबको मिला। लेकिन जब क्वेश्चन उठा वॉइस एंड वीडियो, भाई कैसे दोगे? आपने डेटा तो हाई स्पीड दे दिया, लेकिन वॉइस एंड वीडियो के लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है? क्या सोल्यूशन है? तो यहाँ की जो कम्युनिटी थी 3GPP की कम्युनिटी, उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा इस सोल्यूशन को हम कैसे लिवरेज लेते हैं। एक पहले कभी किसी ने वॉइप बनाया था, हम वॉइप को उठा लेते हैं। जब इन लोगों ने इसके ऊपर R&D की, उन्होंने कहा नहीं, वॉइप सॉल्यूशन इसके लिए कंपैटिबल नहीं होगा। द रीजन बीइंग, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं मोबाइल नेटवर्क की, वो तो रोमिंग है, वो रोमिंग सिचुएशंस आती है जहां आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे हाई स्पीड मूव करते हो, ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, फर्स्ट फ्लोर पे हो, फिर एकदम 5th फ्लोर पे हो, फिर अपनी गली में हो, फिर अंडरग्राउंड हो। देयर आर मल्टीपल रोमिंग केसेस। तो वॉइप तो फिक्स लाइन के ऊपर चलता है, जहां बैठे हो वहीं दे रहा है। ये वॉइप का बॉक्स थोड़ी उठा के कोई चलेगा अपने साथ, भाई ये कंपेटिबल नहीं है। यहाँ तो वॉइस और वीडियो की फैसिलिटी हम वॉइप से नहीं ले सकते। देन देयर इज ए टग ऑफ वॉर स्टार्टेड। एंड ये जो आईएमएस के जो फेलियर थे, जो कम्युनिटी ये उठकर आती है और वो बोलती है डोंट वरी, ये जो वॉइप नहीं कर सकता ये हम कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। इन्होंने इनके साथ डिस्कशन किया और अपने सोल्यूशन को 3GPP में 2000 पहले ही 9 में ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका था। इन्होंने कहा इसको मर्ज कर दो किसमें? 3GPP सोल्यूशन के साथ। इस बात को इन्होंने POC दिया, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट दिया, ये कम्युनिटी एग्री कर गई, ये कम्युनिटी ने ऑलरेडी इसको ऑफर किया था। दोनों कम्युनिटी को कंबाइन करके एक कम्युनिटी बना दिया। उसके बाद IMS की रिलीज जितनी भी आई वो सारी 3GPP बेस्ड स्टैंडर्ड थी। और ये उसके बाद ऐसा सक्सेस हुआ दोस्त, ऐसा सक्सेस हुआ कि आज तक रुक नहीं रहा है। ये आज तक रुक नहीं रहा। व्हाट अबाउट फ्यूचर? व्हाट अबाउट फ्यूचर? यानी एलटी को और IMS को जब मर्ज कर दिया गया, ये बन गया वोल्टे। तो ये दुनिया जो चली है 2011 से लेकर 2000 आज 21 है, अभी भी चल रही है। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है 5G, जिसको हम NR बोलते हैं। अब NR में भी आपको ऑलरेडी पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए गुड न्यूज, वॉइस एंड वीडियो के लिए IMS ही रखा गया है। तो इसको हम नया न्यू रेडियो ओवर ये 2022 से जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, ये आगे तक जाएगी। बात करते हैं 6G की। जब 6G आ जाएगा, 6G में भी सोल्यूशन यही है, 6G में भी सोल्यूशन यही रहने वाला है 2030 अराउंड। 7G में भी सोल्यूशन यही रहने वाला है, यानी 2040। इतने में तो हम रिटायर भी हो जाएंगे यार। कहने का मतलब ये दुनिया जो IMS की स्टार्ट हुई है वॉइप की फॉर्म में, वॉइप के बाद वो IMS बन गई। IMS की दुनिया जब से चल रही है, चाहे उसको वॉइप बोलो चाहे उसको IMS बोलो,
जोन सी टेक्नोलॉजी चल रही है वो कब से स्टार्ट हुई है, पुरानी जर्नी जो आज तक सस्टेन कर रही है, आने वाले 50 साल तक सस्टेन करेगी और हमें रोटी कमा के देगी, और इसके साथ न्यू न्यू एप्लीकेशंस आने वाली हैं। आपने आईएमएस की दुनिया में वीडियो का नाम सुना है, वीडियो का नाम सुना है, ऑडियो का नाम सुना है, एसएमएस का नाम सुना है, रिच कम्युनिकेशन का नाम सुना है, चैटिंग का नाम सुना है, ऑनलाइन चैटिंग का नाम सुना है। क्या आपको पता है आने वाले टाइम में गेम्स भी सारी आपकी आईएमएस पे ही आ रही हैं और आ चुकी हैं। मेटावर्स, एआर, वीआर, एगुमेंट रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, दीज ऑल ऑपरेशन, जो मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, जो भी कम्युनिकेशन होगा, ऑल एप्लीकेशंस आर कमिंग ओवर द आईएमएस। ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग। एमएल, मशीन लर्निंग, आईओटी, ऑल एवरीथिंग इज कमिंग ओवर आईएमएस और वाया आईएमएस। तो ये चीज तो प्रूव हो गई, जो मैं टाइम यहाँ इन्वेस्ट करने वाला हूँ, ये मुझे लॉन्ग रन में मेरा ब्रेड एंड बटर बनके मुझे हाईएस्ट सीटीसी के साथ लिवरेज लाइफ देने वाली है। Am I clear on this guys कि हम इस पे टाइम इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? Are we clear on this? Yes, sir. अब छोटी सी बात करते हैं, बहुत छोटी सी, टेक्निकल ही जा रहे हैं हम लोग, अब बहुत टेक्निकल जाएंगे। ये आईएमएस की दुनिया किन चीजों पे आधारित है? ये आधारित है लिनक्स के ऊपर, वीएम के ऊपर, जो कि आपका एक वीएम होता है, मैं इसका नाम वीएम डाल देता हूँ, ब्रैकेट में लिनक्स डाल देता हूँ। चिप पे प्रोटोकॉल है जो कि डायमीटर पे, राइट, खत्म। आपने इतना सीख लिया, आपने सब सीख लिया। यही दुनिया है, यही दुनिया। यकीन नहीं? लेट मी शो यू समथिंग क्विकली, टेक्निकली आई विल शो यू। गाइस मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ये जानते हैं लोग ये क्या है? ये स्क्रीन क्या है? किसने कभी एक्सपीरियंस किया है? वर्चुअल बॉक्स है सर। वर्चुअल बॉक्स सर। कभी बनाया अपने हाथों से? कोई लिनक्स इंस्टॉल किया? कैसे इंस्टॉल किया है बताओ सबको। वो तो सर डायरेक्ट गूगल से इंस्टॉल करके नेक्स्ट करके इंस्टॉलेशन हो जाता है। नेक्स्ट करके इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद आप इसमें क्या डालते हो? तो उसमें ऑपरेटिंग मशीन डालते हो, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो। तो कैसे करते हो, कैसे डालते हो? सर उसमें ओपन करके वहाँ पे जैसे हमें लाइनक्स का कोई सा भी, जैसे रेड हैट करना है, कोई सा भी इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल कर सकते हैं। कितनी सारी इमेज है, अगर सोचो, अगर मैं आपको अभी ये काम दे दूं, सिस्टम पे वर्चुअल बॉक्स भी डालना है, लिनक्स का वीएम भी बनाना है, सेंटोस का, फिर उसको कॉन्फ़िगर भी करना है, फिर उसको अप करना है, फिर उसको लॉगिन करना है, तो मुझे लगता है क्योंकि एक डाउनलोड में ही अप्रोक्स काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर वो हैवी इमेज को लेना, फिर वीएम क्रिएट करना, उस वीएम की इमेज को भी लेना, फिर उसको डालना, कितने टाइम का। ज़्यादा हरी में मत बोलना, सोच समझ कर बोलना, क्योंकि मैंने भी प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन कर रखे हैं। कितना टाइम लगता है इस पे मैनुअल बनाने में? बताओ कितना टाइम लगता है एक वीएम क्रिएट करने में? सर आईएसओ डाउनलोड हुआ तो वो इंस्टॉलेशन का लगभग 45 मिनट से आराम लगता है सर। 45 मिनट्स बोला आपने, मैं 2 घंटे मान लेता हूँ, ठीक है ना, इतना लग जाता है। 45 मिनट्स देख लो, 45 मिनट बोला इन्होंने। अब यहाँ देख लें, कोई वीएम है? कोई वीएम है यहाँ पर दोस्त? नहीं है। मैंने एक कमांड फायर कर दी, सिर्फ एक कमांड फायर की है जिसने 1 सेकंड लिया मुझसे, और टाइम देख लो कितना। कोई वीएम आ गया अपने आप?
ये आ सर गया सेंटोस आ गया। उसमें सेंटोस की इमेज डल गई, लेकिन वो वीएम डाउन है, पावर्ड ऑफ है, मैं कुछ नहीं कर रहा, पावर ऑफ है। अपने आप स्टार्ट हो रहा है, रन हो गया, अप हो गया। कितने सेकंड लगे? डन हो गया। 2 मिनट कितने या 1 सेकंड लगे? मिनट 1 मिनट से कम लगा। 45 मिनट से कम लगा, और जो कि फ्यू राइट, सेकंड्स के अंदर हो गया। हैप्पी और अनहैप्पी? हैप्पी हैप्पी सर। सर। तो एक्चुअल में आपका ये वीएम तैयार हो गया। इसके अंदर बड़ी सारी कहानियां हैं, पर वो कहानी तो हम लर्निंग में सीखेंगे ना, अभी थोड़ी ही सीखेंगे। अब नेक्स्ट हमने देखा हमारा एक वीएम बन गया। सिप, सिप होता क्या है यार? सिप होता क्या है? सिप का मतलब कॉल, सिप का मतलब कॉल। कॉल करके देखें, एक कॉल यस सर। करके देखें। यस ठीक सर। है, ओके सर। चलो जल्दी से एक कॉल मिलाते हैं और देखते हैं कॉल मिलाने से क्या क्या होता है। ये बी पार्टी है, ये ए पार्टी है। सर जो आप टूल यूज करो सारे ओपन सोर्स हैं? सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, वेट करो। ये बी पार्टी है, ये ए पार्टी है, ठीक है। बी पार्टी ए पार्टी को आज एसएमएस भेजेगी। आज हम कॉल नहीं मिलाते, हम एसएमएस भेज देते हैं। कितने दुनिया जानते हैं? मुझे एक सिंपल आंसर दो, ये करने से पहले कितने लोग जानते हैं जब आप अपने मोबाइल से किसी को एसएमएस भेजते हो तो आपके मोबाइल पे कौन सा प्रोटोकॉल हिट होता है? आंसर मी। सिप। आपने कभी एक्सपीरियंस किया जैसे आपके हैंडसेट से सिप प्रोटोकॉल का कोई मैसेज निकलेगा एसएमएस भेजने में, तो कौन सा एग्जैक्ट मेथड ट्रिगर होता है? बड़े सारे उसमें पब्लिश हैं, अपडेट हैं, प्रैक हैं, इनवाइट हैं, मैसेज हैं, देयर आर मेनी अदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेस। कितने? इनवाइट, कॉल के लिए इनवाइट, एसएमएस के लिए नहीं पता, तो पता करेंगे ना, पता करेंगे। मैं थोड़ा सा हाई लेवल पे दे देता हूँ आप लोगों को, ये पता कर लो, ये लो, ये है सारी दुनिया जो आप सीखोगे, टोटल ओवरऑल अपना स्ट्रक्चर। मैं थोड़ा सा इसका हाई लेवल बता देता हूँ। सिप है, सिप की दुनिया है, क्या है इसमें? सर्वर चाहिए, राइट, रजिस्ट्रार चाहिए, सिंपल हाई लेवल पे समझ रहे हैं। बेसिक कॉल फ्लो क्या होता है? जब आप एक कॉल मिलाते हो, इनवाइट निकलता है, 100 ट्राइंग आता है, 180 रिंग 200 ओके आता है, एक। पर ये तो सीखेंगे ना, सिर्फ देख लो, अभी अभी मैं सिखा नहीं रहा, सिंपल देख लो बेसिक मैसेज। कौन कौन से टोटल सिप के प्रोटोकॉल में कौन कौन से मैसेजेस सपोर्टेड होते हैं, आप ये देख सकते हो। बट क्यों सपोर्टेड है और क्या पर्पस है, विल टेल यू। मैसेज मैसेज भेजने के लिए होता है, एसएमएस भेजने के लिए, अपडेट आपको इवेंट को अपडेट करने के लिए, रेफर ट्रांसफर करने के लिए, पब्लिश किसी इवेंट को पब्लिश करने के लिए, सब्सक्राइब किसी इवेंट को सब्सक्राइब करने के लिए। क्यों सीखेंगे भाई? फिर उसके बाद रिस्पॉन्स आता है, यानी कोई रिक्वेस्ट आप भेजोगे, रिस्पॉन्स आएगा, सीखेंगे हर एक रिस्पॉन्स का मीनिंग क्या होता है, राइट। फिर मैंडेटरी हेडर्स आ जाते हैं, ये मैं कोई अभी पढ़ा नहीं रहा, सिंपल हेडर्स है, राइट। ये दुनिया है सिप की, जो अब मैंने आपको दिखा दी, जो आपको, लेकिन मुझे इसको ना फील कराना है आपको, दैट इज इंपॉर्टेंट। फील करें, कैन वी फील दैट? यस सर। एक डेमो आपको जैसे वीएम का दिया है, मैं एक डेमो सिप की कॉल का देना चाहूंगा, 1 मिनट दो। आज कॉल करने से पहले एक एसएमएस भेज देते हैं, ठीक है।
आप देखना मैं मैसेज क्या भेजूं, ये बी पार्टी है जो ए को मैसेज भेजेगी, क्या भेजूं बताओ आप ही, बताओ हेलो क्या वर्ल्ड। लिखूं, हेलो वर्ल्ड मिला ए को, और क्या भेजूं, हेलो की स्पेलिंग गलत हो गई सॉरी, हाँ और क्या भेजूं, टुडे इज संडे। गुड मॉर्निंग। देखो जब भी मैं कुछ भेज रहा हूं ना, प्रोटोकॉल यानी आपके हैंडसेट में क्या होता है ये देखो, जो आप हैंडसेट पे भेजते हो ना मैसेज एक दूसरे को चैटिंग में, जब भी कुछ भेजोगे आपके सिप प्रोटोकॉल में ये हरारत होगी, ये सिप प्रोटोकॉल है, ये देखो सिप प्रोटोकॉल, उसमें कौन सा मैसेज गया, मैसेज, ये मैसेज क्या लेकर गया, लुक ये मैसेज क्या लिखा गया, हमने पहला मैसेज भेजा था हेलो वर्ल्ड, गया, फिर उसका रिस्पॉन्स आया 200 ओके कि हाँ मैंने डिलीवर कर दिया, गया, रिस्पॉन्स आया डिलीवर्ड, फिर दूसरा मैसेज क्या भेजा था हमने, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गया, हैप्पी और अनहैप्पी और नॉट हैप्पी, आई मीन टू से हैप्पी सर। कुछ समझ आया, थोड़ा कोरिलेट कर पा रहे हो, इसको सोचो ये आपका हैंडसेट आपका खुद का मोबाइल है, ये मोबाइल है, इसको मोबाइल शेप दे देते हैं ना, ऐसे करके छोटा बना देते हैं, ये आपका मोबाइल है, यकीन मानो मुझे ये एक्सपीरियंस आपको इसलिए देना है ताकि आपको पावर पता चले, सिप की पावर क्या है। आप जो बोलते हो ना हैंडसेट पे मैंने एसएमएस भेज दिया, मेरे पास रेडियो सिग्नल आ रहे हैं, मेरे पास टावर आ रहा है, मेरे पास वो सिंबल आ रहा है, मेरे पास कवरेज है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट रीजन, नहीं भैया, आप जब मैसेज भेजते हो कोई दूसरा प्रोटोकॉल पिक्चर में होता ही नहीं है, आपका ये सिप होता है, इट्स मी सिप ओनली, ये सिप ओनली, तीसरा मैसेज चला गया सिप ओनली, उसमें क्या लेकर गया वो सिप ओनली, जो आप किसी को चैटिंग करके भेजते हो या अपने किसी को कॉन्फिडेंशियल मैसेज भेजते हो तो ट्रस्ट मी अपने ओटीपी अपने कॉन्फिडेंशियल पासवर्ड शेयर करना बंद कर दो, ऑपरेटर बोलते हैं सिक्योर्ड है कहीं लीक नहीं होगा, बट वो नेटवर्क पे जाके लीक होने के चांसेस होते हैं, तो बैंक की कोई भी डिटेल कॉन्फिडेंशियल होती है तो डू नॉट शेयर, नाउ ऑनवर्ड्स लीक हो सकते हैं, अगर सिक्योरिटी में कहीं लीकेज है तो वो लीक हो सकते हैं, ठीक है। नाउ हमने आज मैसेज तो देख लिया, किसका मन कर रहा है सर कॉल देखने का, ऑडियो कॉल, यस सर। ऑडियो कॉल कितनों का मन कर रहा है, सर ये मैसेज तो सिक्योर कर दो। मुझे दिखाइए इधर, अभी किसी ने कुछ बोला, सर मैं बोल रहा हूँ कि ये तो मैसेज जो करते हैं मोबाइल टू मोबाइल मतलब ये तो सिक्योर है नहीं क्योंकि साफ दिख रहा है। यस पर इसको ऑपरेटर सिक्योर्ड बनाता है, उसके लिए अलग प्रोटोकॉल्स आते हैं, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड सिक्योर्ड कम्युनिकेशन, दैट मींस आपका जो मैसेज दिख रहा है ना हाय गुड मॉर्निंग वो वायशक के अंदर, वो उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं, बट वो लर्निंग हम अभी थोड़ी Encrypted हो लेंगे, जाता है। वो इनक्रिप्टेड हो जाता है, बट वो इनक्रिप्टेड कैसे होता है तो हम अपनी सेशन में लेंगे ना जब हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग के भाई इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सब चीजें सिखा पाऊँ, अभी हम सिर्फ फील कर रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपने यस सर। रेस किया बहुत वैलिड क्वेश्चन रेस किया कि ये तो सिक्योर है ही नहीं, बट ऑपरेटर आपको सिक्योरिटी देता है जिसकी वजह से वो इनक्रिप्टेड हो जाता है, वो सीखेंगे। यस चलो अब नेक्स्ट कॉल, कैन वी मेक ए कॉल, कैन वी यस मेक ए सर। कॉल, बी पार्टी Yes. को ए को कॉल करेगा, Yes, sir. चलो डायल हिम, पीछे देखो, कुछ समझ आया, शांत हो गए यार आप लोग तो सब, यही सर। नहीं सर देख रहे थे। चलो मैं दोबारा कॉल लगा रहा हूँ, यहाँ बेल बज गई है, अब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मेरी जो वॉइस जा रही है ना, आप भी कुछ बोलोगे वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा, आप बोलो कुछ बोलो,
हेलो सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। चेक करे अपने लोग कॉल कर। अब कॉल एंड करा देते हैं। हम जो थ्योरी पढ़ते हैं उसको मैंने प्रूव करके दिया आपको। मैंने कॉल अटेम्प्ट की, कॉल लगाई। इसको ना थोड़ा नीचे कर देता हूँ तब आपको समझ लेगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, इसको दोबारा वायशक ट्रेसेस को स्टार्ट करते हैं, तब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं दोबारा कॉल मिलाता हूँ, आप देखना। मैंने कॉल अटेम्प्ट किया तो क्या होता है, हरकत देखना। सर ये ए नंबर क्या है देखो सर? एक प्लस मिनट एक मिनट, जब मैंने कॉल किया पहले इनवाइट आया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इंटरप्ट मत करो 1 मिनट के लिए प्लीज। इंटरप्ट मत करना, सिर्फ देखो, सिर्फ देखना। सिर्फ कॉल मिलाई है, अभी रिंग हो रही है, प्रूव हो रहा है। कॉल मिलाई है, उठाया नहीं है, रिंग हो रही है। कॉल उठा लूं? यस सर। जैसे कॉल उठाया सर 200 ओके आ गया, एक आ गया। दोनों के बीच में बात हो रही है। आप भी कुछ बोलोगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा अभी। सर आप कॉल रिंगिंग को टर्मिनेट 180 कर दें। होती है। हाँ जी कर सकते हैं। चलो, कॉल को टर्मिनेट करें तो अभी तक हमने क्या सीखा था? टर्मिनेट करने पे क्या होता है? पाई जाता है। बाय मैसेज। क्या यस ये सर। थ्योरी प्रूव हो गई आज की डेट पे? हाँ सर। अंदर की कहानी हम यस सर। यस सर। यस सर। कैसा फील आया? सर अच्छा लग रहा है सर। बढ़िया। एक और मैजिक दिखाऊं? यस सर। अभी तो हमने सिर्फ सिप देखा, लेकिन आपकी जो ऑडियो चलती है, आपकी जो ऑडियो चलती है वो कभी भी सिप पे बेस नहीं होती। यानी आपसे मैं बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हो, ये सिप वाला काम नहीं है, ये आरटीपी करता है, एक अनदर प्रोटोकॉल है। उसके पैकेट्स देखना चाहोगे? यस सर। यस सर। सर चलते जा रहे, देखो मैं बोल रहा हूं ना, आरटीपी पैकेट सारे कैप्चर। आप भी बोलो, आपके पैकेट कैप्चर हो जाएंगे। बोलो सर कुछ भी बोलते हैं तो वो कैप्चर हो रहा है। जो, हाँ बोलने आप की भी बोलोगे कैप्चर होगा, मैं बोलूंगा कैप्चर होगा। बोलो, क्योंकि कॉल चल रही है ना। आप क्यों, द रीजन क्योंकि आपकी कॉल को ये हैंडसेट सुन रहा है, इसलिए वो रिकॉर्ड हो रहा है। इसको वैसे मत समझो कॉल आपके पास नहीं आई, आप तो सर लैपटॉप पे हो ही ना। यदि साइलेंट रहे तो? साइलेंट रहने में भी तो सेम चीज है। साइलेंट रहने पे नहीं आएगा आरटीपी पैकेट्स, लेकिन पीछे से थोड़ा सा भी उसको नॉइस सुनाई नहीं देगा ना। मेरे यहाँ से खटखट हो रही है, कंस्ट्रक्शन म्यूट चल रहा कर है। दे सर, म्यूट कर दे। आई मीन्स म्यूट हाँ कर दे। म्यूट कर दो, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो, इसमें क्या दिक्कत है? म्यूट हो जाएगा दोनों साइड से। तो अभी हम इतना ही सर सीख अभी रहे हैं। के अब बारे मैं में इसको कभी क्लोज कर देता हूँ, कॉल को मैंने स्टॉप कर दिया। अब मुझे देखना है जो मैंने बात की वो किस फॉर्म में जा रही है मेरे आरटीपी पैकेट से। देखो भैया, पेलोड एफ एफ एफ, किसी पैकेट में कुछ जा रहा है, किसी पैकेट में कुछ जा रहा है। यहाँ देखो नीचे की साइड पे, यानी ये जो मैं बोल रहा हूँ ये एनक्रिप्ट होके, यहाँ पर इंक्रिप्शन अलाउड है, क्योंकि यहाँ इंक्रिप्शन आरटीपी आपको बाय डिफॉल्ट देता है, इसलिए वो इंक्रिप्शन है। यानी मैं जो भी बोल रहा हूँ वो पेलोड में जा रहा है, आप कुछ बोल रहे हो वो पेलोड में आ रहा है। यानी दो हैंडसेट ने एक दूसरे से बात की है तो आरटीपी के प्रोटोकॉल में ये मैसेज इस फॉर्म में जानता है। बट क्या मेरी इस बात पे विश्वास करोगे? सर ये बोलने का मतलब ये हुआ कि ये सिक्योर मतलब जा रहा है कि मतलब पैकेट के रूप में। पैकेट के रूप में। अब ये पैकेट के रूप में गया और मैंने इसको कैप्चर कर लिया विद द हेल्प ऑफ वायशा। क्या इस थ्योरी को प्रूव करें कि वाकई में ये वही पैकेट है जो मैंने बोलते वक्त है? यस सर। ये देखें, फील सर करें, वन कि इसको प्ले करें।
How was it feeling now, guys? तो कुछ वॉइस नहीं आई अब। इसमें तो समझ में ही नहीं आया सर क्या चल रहा था। अब वो इसलिए नहीं आएगा ना यार, वो जो मेरी वॉइस थी वो मुझे सुनाई दे रही है। लैपटॉप पे उतना ऑडियो तेज है या टीम्स में वो प्रॉब्लम है, बट अल्टीमेटली वो मैं सुन रहा था। जो मेरी वॉइस थी, जो मैंने बोला, उसने उस वायशक ट्रेसेस ने जो आरटीपी पैकेट्स कैप्चर किए वो दोबारा उसको रिप्ले कर रहा था। तो इट मीन्स कि मैंने वो प्रूव करके दिया। जैसे एसएमएस में भेजा था ना, आपको दिखाया था वायशक ट्रेसेस में कि मैंने हाय भेजी, हेलो वर्ल्ड भेजा, फिर आपको वायशक ट्रेसेस में नज़र भी आ रहा था वो नेटवर्क पे। तो आपके आरटीपी पैकेट्स भी नेटवर्क पे ऐसे ही जाते हैं और वो अल्टीमेटली इनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं, बट उनको कोई ना कोई प्ले कर पाएगा। पुलिस कैसे पकड़ती है क्रिमिनल्स को? 10 दिन की पुरानी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा के ऑपरेटर से बोलती है इसने इससे ये बात की, इसने इससे बात की। द रीजन क्योंकि वो आपकी कॉल अगर रिकॉर्ड हो रही है तो somebody will be able to take those traces and can prove कि आपने किससे क्या कम्युनिकेशन किया। चलो जी, आई एम ऑलमोस्ट डन विद माय डेमो। सर ये सॉफ्टवेयर हमें देंगे ना, मतलब जब क्लास ये स्टार्ट हो सॉफ्टवेयर जाएगा की तो हम दुनिया, करेंगे ना? ये सॉफ्टवेयर मेरा बनाया हुआ है। आपको क्या सीखना है मैं बताता हूँ। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है सब मिलेगा आपको, ओके लेकिन सर, आपका ओके फोकस सर, कहाँ ओके होना सर, चाहिए? यस जिस सर, कंपनी में जाओगे वहाँ अलग सॉफ्टवेयर्स होंगे, राइट? उन कंपनीज यस में सर, अलग सॉफ्टवेयर होंगे, लेकिन आपको क्या सीखना जरूरी है? आपके लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ प्रोटोकॉल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो मैंने आपको भी दिखाया है कॉल के वायशक ट्रेसेस, उनके अंदर क्या है और वो मैसेजेस कर क्या रहे हैं, वो प्रोटोकॉल की लर्निंग पे ही आएगा। आपको डायमीटर सीखना जरूरी है, और आपको यार मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ जब स्लाइड बना रखी है रोड मैप की। मैं रोड मैप वाली स्लाइड दिखा देता हूँ जो आपकी जर्नी में आपको सीखने को मिलेगी। दिस इज, ये देख लीजिए आपकी जर्नी जो आपको सीखने को मिलेगी, जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। यस सर। सर इसमें सेकंड वाले स्लाइड पे एक बार जाएंगे ना, 2 नंबर स्लाइड्स पे? यस सर। सर इसमें जितने सारे ये नोड्स हैं सर इन्वॉल्व, ठीक है, उनका रोल आप सर एक्सप्लेन ये कर देंगे ना, और ट्रेस बिल्कुल वगैरह लेना सर बिल्कुल किसका क्या है? करूँगा यस सर, यस सर, ये डिटेल जानना, में। जैसे SCCF, ICCF, PCCF, AGCF इनका, फिर बिल्कुल मीन सर जितने एप्लीकेशंस हैं सर इसके। राइट, ये सब अपने ट्रेनिंग के पार्ट है। ट्रेनिंग में सब यस सर, एक्सप्लेन यस सर, किया जाएगा, सिखाया यस जाएगा। यस सर, और ट्रेनिंग मेरी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। उसमें आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज व्हाट आई कैन इंश्योर यू, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लियर करूंगा विद प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के साथ। मैं थ्योरी सर बिल्कुल नहीं बिलीव करता इंग्लिश टर्म्स में, कि इंग्लिश का आपको एक पीपीटी बना के दे दिया गया, आपको नोट्स बना दिए गए, रट्टा मारो नहीं। मैं बिलीव बिकॉज सर अभी जो प्रॉब्लम हो रही है हमें सर, ट्रेस एनालिसिस करने में होती है दिक्कत कि सर कौन सी हाँ आईपी कहाँ से आ रही है और इसके करेक्ट, अंदर क्या मैसेज जा रहा है, क्या प्रोटोकॉल जा रहा है सर। आई गॉट योर और ये पॉइंट, आई फिर गॉट योर पेन। तो डोंट वरी मैं सर मेरे, इसीलिए सर आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे को जितने एप्लीकेशन है सर यहाँ जितने यूज हो रहे हैं वोल्टी में सर, उनका रोल आप बता देना प्लीज सर, ठीक है? बिल्कुल और सर 101%। उसके अंदर के मैसेज। yes यस, yes, this is all being covered up, don't worry on this। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है, ये सब सर आई एप्लीकेशन है ना, ICSCF, yes SCCS? yes सर एक चीज और करके चीजों, दोस्तों, आप यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट मत रहो। आपका IMS आपके लिए गुड न्यूज़, 5G में भी IMS ही लगा है, कोई दूसरा सोल्यूशन ही नहीं है। ये देखो कितना बड़ा IMS है, कितना बड़ा 5G का नेटवर्क है, उसमें IMS ही फिट किया गया है वॉइस और वोल्टे के लिए। एंड आपको आउटकम ऑफ योर स्किल्स विल बी हेयर। जब आप ये सीख जाओगे तो आउटकम ये होगा कि आपने सारी ये स्किल्स डेवलप कर लीजिए अपने आवाज। दिस इज व्हाट वुड बी द आउटकम ऑफ योर स्किल्स, आउटकम ऑफ योर लर्निंग। आपको ये सब सीखने को मिलेगा। तो आज की आधे घंटे में तो मैं यार ये सब नहीं सिखा सकता, इट्स लॉन्ग जर्नी। बट मैंने आपको एक थोड़ा सा स्पार्क दिया है, एक एसेंसेस दिए हैं कि मेरी ट्रेनिंग, मेरी लर्निंग आप लोगों के साथ कैसे रहने वाली है। इट इज ऑल यू नो वेरी इंटरेक्टिव। आई एम डन, सो एनी क्वेश्चन फॉर मी और आरव? प्लीज आरव, ओवर टू यू नाउ। आई एम डन। Yes, I am here.
Anyone ask your question? Hello. Yes. Yes, sir. My only concern was that I am working as an RF engineer at first now, and my profile is regarding OSP, and I'm wanting to switch to IMS, but I'm seeing that there are people who have experience in telecom, and I don't. So the only concern is that any scenario further come that I will be lacking behind than other companies? अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है लास्ट 13 ईयर का, ठीक है, आप पुराने किसी भी प्रोफाइल पे हो, एटलीस्ट आपको टेलीकॉम से रिलेटेड प्रोफाइल होना चाहिए, ठीक है। तो जो लर्निंग है, लर्निंग के बेस पे आपका जो प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल में हम मॉडिफिकेशन करेंगे। वहां पे हम आपको सिप, BOIP और IMS का लर्निंग शो करेंगे। उसके बेस में आप इजीली ट्रांजिट कर लोगे, नो इशू। आई हैव डिलीवर्ड ऑलमोस्ट 10,000 प्लस सिलेक्शन इन लास्ट 13 ईयर। सर टेलीकॉम की किसी भी फील्ड में है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, जैसे इंस्टॉलेशन हुआ, नथिंग क्वालिटी? नथिंग नथिंग नथिंग। सर अभी जो भी मुझे देखने को मिल रहा था, तो ज्यादातर आरएफ का स्टूडेंट को देख रहे थे, मतलब आरएफ फील्ड के देख रहे थे कि मतलब IMS शिप में हुआ है, इसलिए मुझे डाउट हो रहा था। मोस्टली क्या है कि शुरुआत में आरएफ वालों ने ही घुसने का कोशिश किया। आज की डेट में सब, अभी हमने एक बंदा था म्यांमार में था, BSS इंजीनियर था, इंस्टॉलेशन, BSS में सारा ही कुछ आता है ना। यस सर। उस बंदे ने ट्रेनिंग लिया, अभी एरिक्सन EGI नोएडा IMS इंटीग्रेशन पे गया बंदा। प्रीवियस कई वोडाफोन के एम्प्लॉय थे, BSS प्रोफाइल वाले बंदे थे। जी। उन्होंने टेक महिंद्रा ज्वाइन किया, जियो ज्वाइन किया, कैपजेमिनी ज्वाइन किया, स्टरलाइट ज्वाइन किया। टेलीकॉम का बैकग्राउंड रहेगा, सारा चेंजेस हम करेंगे अकॉर्डिंग टू कंपनी रिक्वायरमेंट। यस, हो जाएगा, कोई इशू नहीं होता। मैं किसी प्लांट में काम करने वाले बंदे को नहीं बोलता कि ये करो, बिकॉज अगर कोई सपोज करो कोई सीमेंट प्लांट में है या कोई पावर प्लांट में है, उसको मैं सजेस्ट नहीं करता, बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग ओनली फॉर मनी। यस। आप ट्रेनिंग करोगे, आप अपना टाइम स्पेंड करोगे, अपना मनी स्पेंड करोगे, तो मैं उसके साथ नहीं खेल सकता हूँ। अवर मोटो इज ओनली योर सिलेक्शन। जी। यस, नेक्स्ट। So can you let me know what is the time for the duration for this course and what is the fees? Duration will be next 3 months. Will start from next Saturday evening 7 to 9, and fee will be 30,000. 30,000. And it is including Saturday, Sunday, or only for Sunday? Only weekend, Saturday and Sunday both. If any कोई गवर्नमेंट का छुट्टी होगा, if I am available or trainer is available, also plan, so that will cover in less time. So actually thing is that actually I am in Ericsson. Okay, so my working day is like Saturday and Sunday, and Friday, Thursday is my holiday. So it is possible to provide the recording session to me so that we can Yes, will provide our all recorded session. So is there any So we'll limitation provide to access recording. this? No, Is there any anytime you limitation can also? access. You can access anytime till your selection. Okay, there is no limitation, right? There is no limitation. Okay, yeah, thanks. Next. What about the placement after the completion? भाई आवाज नहीं आ रहा आपका क्लियर, थोड़ा जोर से बोलो। सर कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो प्लेसमेंट होगा उसका क्या प्रोसेस है?
देखो मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। ऑलमोस्ट जैसे ही 2 महीने कंप्लीट होंगे, जिसमें सिप और वीवाईपी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। मैं आपको कंप्लीट जर्नी बता देता हूँ। जैसे 2 महीने कंप्लीट हो गए, विल मॉडिफाई योर सीवी एंड पब्लिश इन कंपनी, सो यू कैन स्टार्ट गिविंग योर इंटरव्यू। Till your selection, will support in terms of arranging the interview. Just you have to prepare on self each and everything, question answer, PPT and all will provide in better way. सर ये मॉक टेस्ट भी लेते हैं ना? Yes, we'll take mock test after a completion of course. SIP complete होगा, we'll take SIP mock test. IMS complete होगा, we'll take final mock test. Okay. Next. Classes would be on weekend or daily classes? Only weekend. We all are professional. Okay, so सर class would बैच be कितने 7 to स्टूडेंट्स 9. का बनेगा? Sorry. बैच कितने लोगों को Class बनेगा? time? Yes sir. Timing is Saturday, Sunday, 7 to 9 in evening. Okay, right. Thank you. Yes. Will it cover Vio Wi-Fi? Yes, we will cover Vio Wi-Fi. No, Vio IP. And yes. Anand, Wi-Fi is voice no. over Wi-Fi Yes, also we're gonna cover up. Yes. Sorry, I'm. Will cover. Next. सर फी अभी से लेके सैटरडे से पहले तक ये करना है ना पे? You have to register before Friday. Before Friday. Okay sir. Yes, we have EMI option. जिनको लगता है कि 30,000 वन टाइम में नहीं पे कर सकते, will have option. Yes sir. और कितने स्टूडेंट का बैच बनेगा सर हम लोगों का? Max up to 20. 40 लोगों को बैठा के 40 लोग ज्वाइन कर लेते हैं, बट क्या होता है बंदे अपना डाउट क्लियर नहीं कर पाते, तो वी हैव नो मोर स्ट्रेंथ इन अ बैच. We have already batch in morning 22 only candidate. Will restrict the candidate after 25 के ऊपर मैं लेता नहीं एक्चुअली. We have separate batch for the student. 30 लोग 40 लोग लेने पे क्या होता है, सामने वाला बंदा पूछ ही नहीं पाता ना. और यहाँ पे जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा तो थिंक आप डिलीवर नहीं करोगे ना मार्केट में. और मोटो इज नॉट कि केवल पढ़ाना है आपको, और मोटो इज ओनली लगाना है आपको. सर रजिस्टर जो आप किए उसी पे करना है क्या? रजिस्टर करने के लिए मेरा नंबर है 614 वाला आपके पास. यस सर. 614 जो लास्ट पे नंबर है, मेरे को आप हाई करो, विल शेयर द डिटेल. नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन? नंबर सर बताएंगे अपना सर? 10 मिनट. दीपक चैट पे डाल दो. हाँ 614 77 099 35614. सर रिपीट करेंगे तो? 77 099 Yes sir. 35614. Yes. चैट में भी आ गया होगा नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
हेलो। यस। सर मैं ये बोल रहा था, जैसे मेरी कंपनी का नाम मतलब एकदम ही न्यू एकता लॉजिस्टिक, जो मीन्स टेलीकॉम का ही काम करती है, मीन्स कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिकल वर्क, हेक्सोडीसी का इंस्टॉलेशन, डीजी का, ये सब का काम है सर। तो सर आगे मीन्स अपन जब रिज्यूमे बढ़ाएंगे तो कोई इशू तो नहीं होगा सर? मीन्स ये कंपनी आप रजिस्टर्ड है? आप इंस्टॉलेशन किस कंपनी के लिए करते हो? रिलायंस जियो के लिए सर। रिलायंस जियो के लिए ना? फर्स्ट तो पार्टी जब वेंडर है। हाँ, तो जैसे सपोज करो कोई टीएनएस करके कंपनी है, जी ठीक है, वो सारी कंपनियों के लिए काम करती है, जी। ठीक है। तो जस्ट आपको ये रिज्यूमे में लिखेगा, आपका पेरोल कंपनी कोई भी हो सकता है, क्लाइंट कोई और हो सकता है, ठीक है सर, बस यही ठीक पूछना है है। सर, कोई दिक्कत तो नहीं हाँ, होगा? कोई दिक्कत नहीं है। टेस्टिंग में इनिशियली मान लो कोई अगर सीएसएस कॉर्प है, ठीक है, जी। वो कंपनी के पेरोल पे ही बहुत सारे बंदे काम करते हैं, और इवन हाँ वो आईएमएस में भी काम करते हैं, तो कोई हाँ प्रॉब्लम सर। नहीं होता है। कंपनी बिलोंग्स होना चाहिए टेलीकॉम से रिलेटेड। हाँ सर भाई, वो ठीक है, जस्ट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के टाइम पे वो सर फिर। कोई भी कंपनी वेरिफिकेशन करती है तो क्लाइंट के पास नहीं जाती है, जी सर। आपकी पर्सनल कंपनी के पास में जाती है। कोई एरिक्सन ठीक। वाला है अभी? कोई बंदा अगर लिखता है वो इस पे है तुम्हारा लिंक्विस्ट टेलीकॉम में, हाँ ठीक है, और वो काम करता है एरिक्सन के लिए, जी। ठीक है, और उसका अगर नोकिया में होता है तो नोकिया का जो वेरिफिकेशन होता है लिंक्विस्ट के साथ होता है, ना कि एरिक्सन के साथ में होता ठीक है सर, ठीक है बस। है, ठीक है, तो नो जी इशू। सर, ठीक सर, थैंक यू। या नेक्स्ट। हाँ सर, हेलो। यस। सर बोला था अगर मैं 5 महीना से आइडियल हूँ अभी, हाँ, तो कैसे एक्सपीरियंस वहाँ पे इंटरव्यू में शो करूंगा मैं? आप आइडियल हो तो देखो, आइडियल है बंदा, तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसमें भी आप जा सकते हो। इन केस अगर आपको लगेगा तो विल हेल्प टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस लेटर एंड ऑल। ओके सर। ठीक है, ऑल्सो विल वेरीफाई, और भी कहीं मिलता है विल सजेस्ट, आप ले सकते हो। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन बट है जो सर ये सब प्रोवाइड करती है। सर प्रोवाइड तो कर देंगे, बट एक्चुअली आजकल कंपनियां भी क्लेवर हो गई हैं, वो बैंक डिटेल्स यूएन भी नंबर मांगती से हैं। सर्च करती है सर, सर्विस हिस्ट्री। सॉरी? बैंक 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 डिटेल्स सर भी मांग पीएफ, लेती है सर लास्ट 3 मंथ। पीएफ का सर डिटेल मांगते हैं, वो यूएन नंबर मांगते हैं जिससे सर्विस हिस्ट्री पता चलती है। तो फिर तो जो जॉबलेस हो गया उसको जॉब ही नहीं मिलेगी, ऐसा होता है क्या कहीं? नोकिया से ले ऑफ होता है, एरिक्सन से ले ऑफ होता है, साल साल भर बंदे घर पे बैठे रहते हैं, क्या उनको जॉब नहीं अरे मिलती? जब पता क्या होगा, आई टेल यू इसका सोल्यूशन क्या है। यू आर राइट हियर, मोस्ट ऑफ देम। आप क्या करना, उनको बोलना मेरा एक्सपीरियंस है बट मेरे को कभी भी सैलरी ना बैंक से मिली। जैसे मान लो आपका सिलेक्शन हो गया और आपको बोला जा रहा है, आप कंपनी का नाम लिखो, अपने रिज्यूमे में ही लिख दो, ब्रैकेट में डालकर रिज्यूमे में उस कंपनी के साथ की कंडीशन, सैलरी इन हैंड, राइट, नो बैंक स्टेटमेंट एंड ऑल दिस। जब ये चीज आप डिस्क्लोज कर दोगे एचआर को ना पहली स्टेज पे ही, तो एचआर आपको खुद ऑप्शन देगा, या तो वो बोलेगा इसको ना अपने प्रोफाइल से हटा दो, क्योंकि अगर आपके पास कोई एविडेंस और प्रूफ नहीं है तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो एक काम करो इसको हटा दो। तो यानी ऑनेस्टली आपने स्टार्टिंग में बता दिया और एचआर ने भी आपको बोल दिया प्लीज हटा दो, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप हटा देना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और सिलेक्शन के वक्त भी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। मान लो एचआर को आपने डिस्क्लोज किया कैश नहीं, मैं कैश लेता था, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, पीएफ में मेंटेन नहीं करता था क्योंकि कंपनी का नेचर ऐसा था, और एचआर कहता कोई नहीं तब भी आप रिटेन करो, डोंट वरी, वी आर नॉट वैलिडेटिंग इट, क्योंकि एचआर भी समझ गए आपने फेक दिखाया है समझे, तो एचआर आपको लिवरेज दे रहा है, बिकॉज ऑफ मार्केट में रिसोर्सेज बहुत कम है, जॉब्स इतनी ज्यादा हैं, तो वो आपको अलाउ कर देगा। यानी जस्ट यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मत बोलना है कि मैं फेक दिखा रहा हूँ, आप ये बोलो मैं इस कंपनी में काम कर रहा था बट मेरे पास कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि मुझे सैलरी इन हैंड मिलती थी, मेरा कोई पीएफ नहीं है क्योंकि मेरा कोई पीएफ अकाउंट बना ही नहीं, क्योंकि कंपनी क्या थी, बहुत छोटी थी और उस छोटी कंपनी के अंदर सिर्फ 10 एम्प्लॉयज से भी कम थे। तो मैंने जो काम किया है वो एक तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म में काम किया है, और मुझे जो सैलरी मिलती थी वो कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म की सैलरी मिलती थी। नाउ एचआर विल गिव यू राइट डायरेक्शन उसके बाद, डोंट वरी। बट अगर आपने ये बात डिस्क्लोज नहीं की, सिलेक्शन करा लिया, ऑफर उठा लिया, कंपनी ज्वाइन कर ली, 100% फायरिंग, फिर नहीं बचा सकता कोई। एग्री और डिसएग्री?
मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ। ऐसे ही काम होता है इंडस्ट्री के अंदर, हम लोग भी सिलेक्शन करते हैं तो ऐसे ही हम लोग लिवरेज देते हैं। तो आपको यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद HR बिफोर सिलेक्शन। कोई बंदा किसी कंपनी से फायर होता है, ले ऑफ होता है, काम नहीं है, ठीक है। अभी लास्ट टाइम एरिक्सन के काफी सारे बंदे ले ऑफ हुए थे, तो क्या उन बंदों को जॉब नहीं मिलता? मिल जाता है जॉब, प्रीवियस के कंपनी के डॉक्यूमेंट के आधार पर मिल जाता है, ठीक है। तो कोई यहाँ पे बड़ा चैलेंज नहीं है। अगर होगा तो जिंदगी भर जॉब ही नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे कोई ऐसा चैलेंज होता नहीं है। सिलेक्शन ऑलवेज बेस्ड ऑन नॉलेज। जब आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा तब आप बताओगे, लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन दोगे कि भाई 6 महीने से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट आइडियल सिटिंग ड्यू टू सम एंड सम रीजन। एग्री और नॉट? यस सर। नेक्स्ट। सर आपने कंप्यूटर का कोर्स व्हाट इज द CTC एक्सपेक्ट? आवाज नहीं आ रहा दोस्त। सर CTC क्या एक्सपेक्ट हो रहा है? CTC भाई मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बंदा जो होता है 4-5, सपोज करो 5 लाख पे है तो वो 10-12 लाख पे पहुंचता है सीधा। जो 8-10 का पैकेज है वो 17-18 पे पहुंचता है। 15 वाला सीधे 20 के ऊपर ही जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, वो 20% नहीं 30% नहीं चलता। जैसे एरिक्सन में या नोकिया में कोई ज्वाइन करता है, 8 लाख का पैकेज है, 30% 10,40,000, नथिंग हेयर। कंपनी है ऑन स्लेब, 10 लाख का स्लेब है, 6 लाख वाले को भी 10 देगा, 4 वाले को भी ऑलमोस्ट 10 के पास बैठा देगा। ये क्राइटेरिया चलता है, एक्सपीरियंस मल्टीप्लाई बाई 2 और 3। सर वेरिफिकेशन जो रिसेंट में जहाँ पे काम कर रहा है उसका सिर्फ वेरिफिकेशन करता है या उसके पहले वाले कंपनी का भी करता रिसेंट कंपनी का ही वेरिफिकेशन होता है, और दो लास्ट की 2 कंपनी और मान लो तो 2 से 3 कंपनी का वेरिफिकेशन होता है। जैसे सपोज करो आपने टोटल 3 ही कंपनी में काम किया है तो 2 कंपनी का वेरिफिकेशन होगा। अगर 5 कंपनी में किया है तो 3 कंपनी करेगा, पीछे का नहीं है? जाता। 2 का में किया है तो सिर्फ एक का ही वेरिफिकेशन होता है या दोनों? हाँ, एक सॉरी, जो 2 कंपनी में काम किया हो तो उसका वेरिफिकेशन दोनों का होगा या एक का? दोनों का होगा। जनरली क्या है, यहाँ पे कंपनी की भी अलग अलग कैटेगरी है ना। आप CSS में जाते हो वो करेगा ही नहीं, आप SCL में जाओगे वो करेगा, TCS में जाओगे वो करेगा, एरिक्सन में जाओगे वो करेगा। कंपनी पे डिपेंड, कंपनी पे डिपेंड करता है। अब CSS कॉप वाला या और कोई कंपनी है मान लो जो थर्ड पार्टी पेरोल पे लेती है बंदों को, अच्छे पैकेज वहाँ भी मिलते हैं, तो वो 30,000 40,000 थोड़ी इन्वेस्ट करेगा। वो तो एरिक्सन, नोकिया, मोवेनियर यही सब करेगा कि भाई जो बंदा मैं लेके आ रहा हूँ परफेक्ट है कि कुछ भी आ रहा है बंदा।